Sir, at 4 I have class. Okay. So, Namo Nama everyone. So today, as I told you, these sessions are for the students of the Ayush class, and it is a course of 1 month. So within that, जो बाकी के हमारे क्लास हो रहे हैं प्रैक्टिकल एंड थियरी, उस सीरीज में one of the sessions or rather 2 of the sessions have been scheduled to be conducted by MD Ayurved, and for that specially we have invited Dr. Ashish Padke. And today's session is going to be only theory. It is not a practical session. And I put the link and invitation to other teachers also. तो इसलिए ये हमने रिकॉर्डिंग करने के लिए लिंक भी ऑनलाइन भी शुरू किया है. तो बाद में भी अगर कोई रिकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं. तो आप लोग भी देख सकते हैं बाद में, क्योंकि ये सिर्फ थियरी है. ओके, so short introduction of Dr. Phadke. Dr. Phadke is a MD Ayurved, and he's also a PhD in philosophy in yoga from Bombay University, and he's a gold medalist MIIM, MS in psychotherapy, and MA in philosophy yoga. So a lot of things are there. So I can just say that he is we are privileged to have you, Dr. Ashish Phadke, to give this lecture on Ayurveda. Basically, the topic is Dinacharya, Ritucharya, Yoga Swastha, and Sada Swachha Sadvrit. Okay. So these topics are, for some of you, Dinacharya, Yogacharya may be known topics जो online है teachers उनके course में हुआ था. So obviously, but from like authority, the doctor, when it is coming, definitely it will make a lot of sense. So you can definitely take a lot of knowledge from this session. Pay attention, and if you have any questions, can they ask in between? Yeah, you can ask. You can raise your hands and you can ask the questions. Okay. So I will invite Dr. Phadke to start the session. Okay. Thank you very much. Yeah, online people, अगर वीडियो चालू रख सकते हैं तो अच्छा है, तो कन्वर्सेशन हो सकता है. हेलो किरण, संगीता, कीर्ति, नमिता, किरण शाह, Shiva. Shiva is from Dubai. He is our senior teacher. Namo Nama. Namo Nama. Namo Nama. Namo Nama, sir. Namo Nama. Good. Yeah. Okay. हाँ ले लो, नोट्स ले सकते. Namo Nama, sir. ले लूंगा, उषा ले लेगी बाद में. Sir, can't hear mic. हिंदी इंग्लिश. अच्छा, सॉरी. Sir, can't hear. हाँ. Now, can you hear? Yes, sir. Yeah, fine. So, well, our today's lecture is going to be on basically 2 different topics. One is Sadvrutta and Swasthavritta. And within Swasthavritta, there are subtopics like Dinacharya, Ratricharya, Rutucharya, and all that, right? But if you ask me very categorically, one need to know basics of Ayurveda before getting into all these things. So how many of you are aware of term Ayurveda? आप सब में आयुर्वेद कहीं ना कहीं जगह सुना होगा. तो आपके अनुसार आयुर्वेद मतलब क्या, कोई बता पाएगा? जड़ी बूटी से दवा देता है वो आयुर्वेद. और कुछ? आयुर्वेद यानी अपनी आयु को बढ़ाना. आयुर्वेद माने अपनी आयु को बढ़ाना, वो आयुर्वेद. ओके, व्हाट एल्स? Ayurveda helps us to live healthy lifestyle, and it has 3 pillars like good diet, sleep, and Yeah, brahmacharya. I'm asking what do we mean by Ayurveda?
what you are telling is the description about Ayurveda. हाँ, natural मतलब Ayurveda. Okay, what else? घरगुती आणि नॅचरोपॅथी ट्रीटमेंट म्हणजे आयुर्वेद. ओके, हाँ, जीवन जगण्याची कला. ओके, और कुछ बोलते जाओ. इफ यू डोंट रिस्पॉन्स, यू आर द लूजर. मैं तो क्या फटाफट बोल के निकल जाऊंगा, बट आप लोग गेन नहीं कर पाएंगे. द मोर यू कन्वर्स, यू नो रिस्पॉन्ड, द मोर यू गेट इट, राइट? सो इट्स लाइक many people, they have got different kinds of answers. Like अभी आपने बताया, तो आपने वो कथा सुनी होगी कि 4 अंधे लोग हाथी को टटोल रहे थे और पूछा गया भाई हाथी कैसा है, तो कुछ लोग बोलते खंबे जैसा है, कोई लोग बोलते रस्सी जैसा है, कोई लोग बोलते सुपार का है, हाँ, या दीवार जैसा है. एक्चुअली दे वर टचिंग अपॉन ऑल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिफेंट, एंड ये सब मिलके एलिफेंट बनता है, राइट? वैसे आयुर्वेद के लिए बहुत लोगों के दिमाग में अलग अलग धारणा रहती है, अलग अलग नोशंस रहती है. कुछ नोशन सही है, कुछ नोशन गलत है. वो सही गलत क्या है, वी विल स्पीक ऑन दैट इफ टाइम परमिट्स, राइट? प्लीज कम. सो जैसे किन्होंने कहा जीवन जगण्याची कला है. एब्सोल्युटली, आयुर्वेद इज अ वे ऑफ लिविंग लाइफ. इट्स नॉट जस्ट टैबलेट्स, इट्स नॉट जस्ट टेकिंग काढ़ा, it's not just taking भस्म या चूर्ण, but it's a totalistic approach. जैसे हम लोग कहते हैं योग क्या है, योग भी जीवन जीने की एक लाइफस्टाइल है, राइट? एंड टू बी मोर प्रिसाइज, आप सब लोग योग पढ़ रहे हो, योगा नहीं है, क्या कहना है, योग, योगा नहीं. हाँ, तो गाना गा योगा, वो नहीं होना चाहिए. हाँ, सो योग की जो प्रार्थना कहते हैं, हर जगह कहते हैं, कई इंस्टीट्यूट्स में, तो कौन सी है वो? योगेन चित्तस्य पदेन वाचा शलम मलम शरीरस्य च वैद्यकेन. हाँ, सो योग जो है वो चित्त के लिए, मतलब मन के लिए, एंड पदेन वाचा मतलब व्याकरण का वहाँ उल्लेख आता है, एंड फाइनली आता है मलम शरीरस्य च वैद्यकेन, मतलब शरीर के अंतर्गत जो मल है उसको ठीक करने के लिए वैद्यक शास्त्र का निर्माण किया है. वो क्या है, वो समय में आयुर्वेद की निर्मित थी. तो ये तीनों पे जिसने काम किया, ऐसे जो पतंजलि मुनि है, उनको हम प्रणाम करते हैं. ऐसी वो प्रार्थना है, स्टार्टिंग में हम कहते हैं. तो वो जो पार्ट आता है, तो उसमें बेसिकली आयुर्वेद का जो पार्ट है, तो आयुर्वेद के पार्ट में अलग अलग चीजों को उन्होंने समावेश किया है. तो टू बिगिन विथ व्हाट एग्जैक्टली आयुर्वेद मीन्स, तो उसका वर्णन किया जाए तो 2 शब्द से आयुर्वेद बना है. आयुर्वेद, ये हालांकि अपन को लगता है एक शब्द है, ये 2 शब्दों से बना है, आयु और वेद. आयु प्लस वेद. सो आयु मीन्स आयुष्य, आयु मीन्स लाइफ, एंड वेद ये शब्द बना है विद शब्दों से. कौन से शब्द से? विद. विद मतलब टू नो, टू अंडरस्टैंड, जानना, समझना, इस अर्थ में. हाँ, या साइंस ऑफ, ऐसे भी उसका ट्रांसलेशन है. सो साइंस ऑफ हाउ टू लिव हेल्दी लिविंग, अच्छे तरह से निरोगी ढंग से जीने की कला जिस शास्त्र में बताई गई है, उसका नाम क्या है? आयुर्वेद, राइट? तो ये आयुर्वेद में मैंने अभी बताया आयु मतलब क्या, तो आयुष्य. मगर ये आयु का और डीपली जाके अगर हमको मतलब समझना है तो क्या है, तो हम जब पैदा होते हैं तो रोता है कोई भी बच्चा, राइट? मेल फीमेल व्होएवर कम्स. तो जो पहला बच्चा रोता है, तो रोने का जो प्रक्रिया कभी चालू होती है, जब सांस लेना चालू होता है बच्चों में. हाँ, तो फर्स्ट ब्रेथ एंड लास्ट ब्रेथ, डेथ बेड पे हम लोग सोए हैं और लास्ट ब्रेथ लिए तो ऊपर चले गए, है ना? आने के टाइम भी पहला ब्रेथ आया तो बेबी रोता है. तो द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट ब्रेथ एंड लास्ट ब्रेथ, उसको कहते हैं आयुष्य. हाँ, और वो आयुष्य अपने को बराबर जीना है, तो वो ब्रेथ का जो अंतराल है उसको बराबर बनाए रखना है. हाँ, एंड इसलिए हम जानते हैं, प्राणायाम सीखते हैं तो आपको बताया होगा कि वेन एवर यू आर ब्रीदिंग सिस्टमैटिकली, मेथोडिकली, हाँ, स्लो ब्रीदिंग हम लोग डेलिबरेटली सीखते हैं प्राणायाम में.
राइट। तो कछुआ बहुत साल तक जीता है और कुत्ता फटाफट मर जाता है, मतलब कंपैरेटिव ईयर के हिसाब से जल्दी मरता है, और कछुआ बहुत लंबा जीता है। तो ये अंतराल को जानना है, उसको प्रॉपरली समझना है, इसके लिए योग की निर्मित जैसे है वैसे ही ये आयुष्य को ध्यान में रखते हुए कैसे बराबर जीना है, कैसे बराबर यूटिलाइज करना है सब चीजों को, ये बताने के लिए जो शास्त्र क्रिएट हुआ है उसका नाम है आयुर्वेद। तो उसकी मैंने अभी बताई वो एटिमोलॉजी बताई, मतलब व्युत्पत्ति बताई। हाँ, जैसे युज शब्द की उत्पत्ति हम जानते हैं, योग युज शब्द से आया है, वैसे आयुर्वेद का क्या है, आयु एंड योग, वेदा, आयुष वेदा, आयुर्वेदा, राइट। अभी उसकी व्याख्या क्या है, तो लिख लो व्याख्या। तो आयुर्वेद की व्याख्या बताते हुए उन्होंने बताया है, श्लोक में बताऊंगा, उसके लिए डिस्टर्ब नहीं होना, क्योंकि संस्कृत में जिनको पता है फटाफट लिख सकते हैं, लिख लो, नहीं आता है छोड़ दो, मैं उसका मतलब बताऊंगा, राइट। उन्होंने व्याख्या में बताया, हिता हितम सुखम दुखम आयु तस्य हिता हितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। अभी गड़बड़ है, संस्कृत जिसको आता है समझेगा, नहीं तो ग्रीक एंड लैटिन है, बराबर। तो उन्होंने क्या कहा है, हिता हितम सुखम दुखम, तो हित अहित सुख और दुख, ये चार पॉइंट्स है, पॉइंटर्स है। कौन से कनेक्शन में, तो नॉट विथ कनेक्शन ऑफ अमिताभ बच्चन, इट इज विथ कनेक्शन ऑफ योर ओन लाइफ। तो आपके लाइफ के कनेक्शन में हित कर क्या है, अहित कर क्या है, सुख कर क्या है, दुख कर क्या है, एंड हिताहितम सुखम दुखम आयुष तस्य हिताहितम। हाँ, और क्या उसके लिए लाभप्रद है, क्या लाभप्रद नहीं है। हाँ, मानम च मतलब विथ स्पेशल रेफरेंस, विथ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स। मानकीकरण ये टर्म दिया है स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। तो कई लोग बोलते हैं ना आयुर्वेद में क्या स्टैंडर्ड नहीं है, एलोपैथिक में तो स्टैंडर्ड है, आयुर्वेद में तो स्टैंडर्ड नहीं है। तो वो बेचारे लोगों को ये डेफिनेशन नहीं पता होती है, और पढ़ी तो उसका मतलब नहीं समझते। तो मानम च मतलब विद स्पेशल रेफरेंस टू स्टैंडर्ड्स, कि क्या कितना लेना चाहिए, उसका मात्रा, उसका एग्जैक्ट मेजर। तो मेजर के साथ में जहां ये बताया है उसको मानम च तच्च यत्र उत्तम। तच्च मतलब जो हमने अभी बताया चार चीजों, तो विथ मेजर्स, तच्च यत्र उत्तम जिसमें बताया गया है, ऐसा जो शास्त्र है उसको आयुर्वेद कहते हैं। तो ये उसकी व्याख्या हुई। अभी इसका और एक ट्रांसलेशन हमको मिलता है अलग अलग ग्रंथों में, कि आयुष्य के चार प्रकार है, हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु। कई बार तो लोग ऐसे ही बताते हैं आयुष्य के चार प्रकार है, लिख लो हितायु, अहितायु, सुखायु, पर उसका मतलब नहीं समझता है कोई। तो ये मतलब समझने के लिए मैंने जो अभी बताया ये ज्यादा अप्लाइड एंड सिंप्लीफाइड मीनिंग है। जैसे अपने यहाँ कई सारे वड़ा पाव के केंद्र है, हाँ, बाबू वाला बाजू में है, तो आप लोगों ने एंड में पार्टी करने के लिए फाइनल किया, चलो लास्ट लेक्चर है आज जाके एंजॉय करो। हाँ, तो किसी ने बताया भाई आज मैं पार्टी देता हूँ सबको, तो 1 राउंड ऑफ वड़ा पाव टू एवरीबडी, सब लोग खा के बहुत तृप्त हो गए, अच्छा टेस्ट है। हाँ, बट दिल नहीं भरा, पेट भर गया, दिल नहीं भरा। तो दूसरा बोलता है चलो तुम भी क्या याद करेंगे, सेकंड राउंड मेरी तरफ से, है ना। तो सेकंड राउंड और एक बंदे ने बताया, फिर वो खा के और भी मजा आई, फिर बोला भैया जरा वो चटनी ज्यादा लगाओ, हाँ, और वो मिर्ची भी देना साथ में चबाने के लिए। हाँ, और बाद में चाय भी मंगा लिया उधर बाजू से, तो और मजा आ रही है। फिर थर्ड राउंड और हो गई, और सब लोग बहुत खुश होके दिल भर के खा के मजा करके घर चले गए। तो सुख प्राप्ति हुई सबको, हुई कि नहीं। हाँ, दूसरे दिन सब सुबह उठ जाते हो, वॉशरूम चले जाते हो, तो दुख ही दुख की प्राप्ति होती है। या किसी किसी लोगों को रात में सोने के टाइम ही दुख प्राप्ति चालू, एसिडिटी चालू हो जाएगी, पेट गैस भर जाएगा, ब्लॉटिंग हो जाएगा, है ना। तो सुख और दुख ये दोनों हम जानते हैं, फिर भी हम करते हैं, राइट। और दूसरी चीज आती है हितकर और अहितकर। तो ठीक है, एक आध बार कहीं वड़ा खाया तो बहुत बुरी चीज नहीं है, पर अगर आपने मात्रा ज्यादा खाई उसकी, या कुछ चीजें बिल्कुल खानी नहीं चाहिए, एक ही कढ़ाई में कई बार वो करते रहते हैं दिन भर,
तो गलत है, वो नहीं करना चाहिए, आपको पता है। तो अहितकर और हितकर, राइट। करेला की सब्जी घर में बोलते हैं भाई खाओ, बच्चे बोलते हैं नहीं वो कड़वा नहीं चाहिए, बट करेला की सब्जी हितकर है, स्वास्थ्य के लिए खानी चाहिए, बट लोग खाते नहीं है। हाँ, और अहितकर क्या है, जैसे ये सब चीजें हैं, राइट। तो ऐसी जोड़ी हमको ध्यान में रखना चाहिए खाने के समय और काम करने के समय भी, न केवल खाने का मगर क्रिया करने के समय भी। जैसे कि ऐसे खाओ कि जो सुखकर भी हो और हितकर भी हो। कहीं कभार वो दुखकर भी हो, जैसे मैंने बताया करेला की सब्जी, बट इट शुड बी हितकर। एंड कभी कभार सुखकर और अहितकर, जैसे वड़ा पाव का एग्जांपल, और दुखकर और अहितकर। आपने कहीं गए चाइनीज रेस्टोरेंट में, फ्रेंड बताया बहुत बढ़िया है, आपने खाया तो आपका निवाला नीचे नहीं जा रहा है, इतना गड़बड़ वाला टेस्ट है, तो दुख कर, पैसा भी गया, दुख हो गया, और बाद में एसिडिटी चालू हुई या जो भी हुआ, तो दुख कर। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड हित सुख, हित दुख, अहित सुख, अहित दुख। तो ये जो अलग अलग जोड़ी है, ये केवल खान पान में ही नहीं मगर क्रिया में। जैसे रात में आम तौर पे लोगों को जल्दी सोना चाहिए, राइट, और जल्दी उठना चाहिए, बट होता क्या है, हम लोग 3 बजे सोने वाले लोग देखते हैं 4 बजे सोते हैं। क्या करता है भैया, नहीं वो व्हाट्सएप पे बहुत मैसेज आते हैं, अगर नहीं मैसेज किया तो बोलेगा कितना खड़ूस है, मेरे को रिप्लाई तक नहीं किया। अरे भाड़ में गया, वो नहीं रिप्लाई किया तो नहीं किया, अपने को क्या प्रॉब्लम है, उसको कल सॉरी बोल दो, इतना ही लग रहा है तो आपको। बट रात भर आप बैठ के वो मैसेज करते रहेंगे तो आपको एसिडिटी हो जाएगी, सर दुखेगा, राइट। तो आपके खान पान के अलावा जो एक्टिविटी है उसमें भी गलत परिणाम देने वाली क्रिया हम लोग अनजाने में भी करते हैं, राइट। या कई कबार इवन योगा की बात मैं बताऊं, कोई कोई लोग सीख लिए प्रॉपरली, क्लास में आके सर ने बताया, आपको सब पता है कि भाई कपालभाति करनी कितनी बार करनी है, 2 राउंड या 3 राउंड ही करनी है, ज्यादा नहीं करनी है, 1 मिनट में आपको 120 स्ट्रोक देने हैं, मगर आपकी कैपेसिटी नहीं है, आप 30-40 में थक रहे हो, मगर आपने देखा नहीं वो 120 कर रहे हैं, मेरे बाजू में 120 तक बराबर कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, और वो करने ही जाता है और फिर उसको आगे नुकसान हो सकता है, राइट। तो वो भी अहितकर चीज हुई। तो ऐसे सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आयुर्वेद का चयन किया है। तो आयुर्वेद इज ऑल परवेडिंग, सब चीजों को इकट्ठा करके उन्होंने उसका विस्तार किया है। उसमें बेसिकली आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। आहार मतलब डाइट, निद्रा मतलब नींद, और ब्रह्मचर्य मतलब ऐसा नहीं कि केवल आपको आजन्म शादी बिना शादी रहना है, आजन्म बिना मैथुन रहना है, ऐसा भी कोई चीज नहीं। उन्होंने क्या बताया कि भाई आप जब तक पढ़ रहे हो तो पढ़ाई का जो उम्र है आपका, तब तक आप एब्सटिनेंस रहो, एब्सटिनेंस रखो, सेक्स से दूर रहो, क्योंकि अगर सेक्स में आप इन्वॉल्व हो जाएंगे कम उम्र में तो आपका ध्यान भटक जाएगा और आप उसके ऊपर, मतलब जो आपकी मेन एक्टिविटी क्या है वहां पढ़ने की, तो उसमें आप फोकस नहीं कर पाएंगे, राइट। अगले उम्र के हिसाब से भी आप चातुर्मास रखते हैं कई लोग, राइट। तो तभी आपका मेन फोकस क्या है, भाई धर्म की कुछ चीजें पढ़नी है, ईश्वर के प्रति समर्पण करना है, तो तभी आप अगर ये एक्टिविटी में चले जाए तो आपका वो फोकस चला जाए। और इसलिए तभी वो बोलते हैं ना भाई प्याज नहीं खाओ, लहसुन नहीं खाओ, क्यों नहीं खाओ, बुराई क्या हो, अच्छी बात है, प्याज लहसुन फर से अच्छा है, बट प्याज लहसुन खाने से आपकी सेक्स अर्ज बढ़ती है, इसलिए वो 4 महीना आप नहीं खाए, ऐसा विधान है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने 4 प्याज खा लिए तो तुरंत आपको गड़बड़ हो जाएगी, वो भी नहीं है, बट आपने लंबा लगातार उसका सेवन किया तो आपको ये होने की संभावना बनी रहती है, राइट। तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए, ये यहाँ तक समझा, कोई प्रॉब्लम, हाँ गुड। नाउ कमिंग डाउन टू आयुर्वेद, उसके अलग अलग विभाग है। उसमें बताया, जैसे किसने बताया कि ये जड़ी बूटी मतलब आयुर्वेद, नो इट्स नॉट लाइक दैट, क्योंकि जड़ी बूटी मतलब हर्ब्स, ये उसका एक पार्ट है। आयुर्वेद की जो दवा है वो आयुर्वेद की दवा हर्बल भी है
हर्बल मतलब वनस्पति जन्य है, जैसे आंवला है, तुलसी है, नीम है, कई सारे हैं, राइट। बाद में उसके साथ में क्या है, प्राणिज द्रव्य है, प्राणियों से उत्पादन जिसका हुआ है ऐसे द्रव्य, जैसे घी है, दूध है, दही है, छाछ है ना, मध है। तो ये प्राणिज द्रव्य है, तो उसका भी प्रयोजन, उसका भी उपयोजन आयुर्वेद कराता है, राइट। और फाइनली खनिज द्रव्य है, जैसा सोना है, चांदी है, तांबा है, पित्तल है, लोखंड है। हाँ, तो ये चीजों का भस्म बनाते हैं हम लोग, अलग प्रक्रिया करके, ऐसे ही खाते नहीं है। तो उसका भी प्रयोग एज ए दवा करके हम लोग ले लेते हैं। तो ये तीनों से एकत्रित जो होती है वो आयुर्वेदिक औषधि बनती है। और इसके अलावा भी ये, इसको कहते हैं द्रव्य स्वरूप, मतलब कुछ सामने दिखता है। और अद्रव्य स्वरूप भी औषधि होती है, जिसमें दवा नहीं रहती है, पर और चीज रहती है, और मोडालिटीज रहती है, राइट। तो उसका भी उपयोजन इसमें होता है। दूसरा एक आयुर्वेद में ऐसा रहता है कि आपके जो दोष है, वात पित्त कफ जिसे कहते हैं, तो अगर बड़े हैं तो उसको घटाने के लिए पहले दवा देते हैं और उसको नॉर्मलाइज करते हैं। तो ये हुई शमन औषधि। और इतनी लेवल बढ़ गई है कि भाई दवा देके कम नहीं हो जाएगी, तो क्या करें, तो उसको खींच के बाहर निकालना पड़ता है। तो कुछ दवा देते हैं, कुछ घी पिलाते हैं, कुछ ऑयल पिलाते हैं, कुछ काढ़े पिलाते हैं, और फिर कुछ चीजें चटाते हैं तो उल्टी होके निकलता है, या दवा की गोली खिलाते हैं तो टट्टी से निकलता है, राइट। या नाक में दवा डालते हैं तो नाक से श्लेष्म के रूप में आता है। तो अलग अलग विधान है उसके। तो ये 5 प्रकार के, इसलिए उसको पंचकर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, पंचकर्म। तो ये पंचकर्म अगर जरूरी है तो ही उसको उपयोग में लाया जाना चाहिए। आजकल क्या हो गया, आयुर्वेद का तो पंचकर्मा एज अ स्टैम्प पेपर में ठप्पा लगता है, पंचकर्मा। कई लोग पेशेंट मुझे फोन करके पूछते हैं, डॉक्टर साहब आप पंचकर्मा कराते हो? बता हाँ। तो मुझे आना है, मुझे हेड मसाज करना है, फुल बॉडी करना है, पादाभ्यंग करना है। बोला तू जा स्पा में जा, मेरे पास बताओ क्यों मुझे करना है। मगर मतलब मुझे करना है तो डॉक्टर इज फाइनल अथॉरिटी, कि वो आपको चेक करके बताएगा कि आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। हाँ, जैसे हम लोग योग में षट कर्म सबको कराते, नीति सबको बोलते सब करो, हाँ वमन धोती सब करो। आयुर्वेद बोलता है ना, जो चीज जिसको करानी है उसको हम पहले चेक करते हैं, क्योंकि जरूरत है और वो सहन कर पाएगा कि नहीं, नहीं तो क्या होगा, उसको नुकसान हो सकता है। और आयुर्वेद का एक बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र ये है कि अगर आप चिकित्सा देते हो तो चिकित्सा देने के साथ में एक चीज हमें ध्यान में रखनी है कि एक रोगों की चिकित्सा हम कर रहे हैं, वो रोग को हम ठीक कर रहे हैं, तो ये करते हुए दूसरा रोग निर्माण ना हो। बात समझ में आई। हम लोग एक रोग की चिकित्सा कर रहे हैं, तो करते करते दूसरे रोगों का निर्मिति उसमें ना हो, इसका प्रावधान हमको रखना चाहिए ध्यान में। नहीं तो एलोपैथी ऐसा हुआ ना, आपने एक दवाई दी, फिर उससे आपको एसिडिटी हुई, उसके लिए दूसरी गोली दी एंटासिड, फिर उससे पेट और कुछ प्रॉब्लम है तो तीसरा दो। तो वो चीज आयुर्वेद कहता है गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और सब घोड़ा 12 टक्के, ऐसा एक मराठी में कहावत है ना, कुछ भी हुआ तो एक ही दवा दो तो खत्म सब। तो ये चीज आयुर्वेद में नहीं होती है। हाँ, तो जैसे कॉमनली मॉडर्न बायोमेडिसिन में कैसे कि डायबिटीज है तो फलाना मेडिसिन है आप दो, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है तो ये दवा है। डोलो 65 एकदम फेमस हो गई थी कोविड में, अलग से बताने की जरूरत नहीं। फीवर है तो दो। तो देखो उसमें भी अच्छी बात है, ऐसा नहीं कि वो गलत है। आज भी एलोपैथी भी अपना जो रोग है, अपना जो अप्रोच है, धीरे धीरे चेंज कर रही है। क्योंकि आप खुद जानते हो कि डायबिटीज की दवा खाली एक गोली सबको नहीं चलती। फिर डॉक्टर बोलते हैं रुक, अभी ये गोली से काम नहीं हो रहा है, डोज बढ़ाते, वो भी काम नहीं कर रहा है, दूसरा एक गोली ऐड करते, वो भी काम नहीं, तीसरा गोली नहीं काम कर रहा है, इंसुलिन वो काम नहीं कर रहा है, दूसरे टाइप का इंसुलिन। तो वहां भी उनको धीरे धीरे ध्यान में आ रहा है कि एक ही टाइप की दवा सब लोगों को काम नहीं करती। उसका कारण है कि जैसे अपनी प्रकृति, अपनी बॉडी टाइप और आपका जो प्रोटोटाइप जो हम कहते हैं तो वो अलग है, उसके अनुसार आपको लगने वाली दवाइयों की नीड भी बदलती जाती है। तो वो लोग भी अभी
स्पेशलाइज्ड मेडिसिन मतलब इंडिविजुअलाइज्ड मेडिसिन, प्रिसीजन मेडिसिन। सो सॉरी, आवाज नहीं आ रहा है तो बताओ भाई, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आप बताइए कि सर आवाज नहीं आ रहा है, तो आई कैन, मैं गलती से निकल गया था। सो प्रिसीजन, थैंक यू। सो प्रिसीजन मेडिसिन की तरफ एलोपैथी भी जा रही है। सो आयुर्वेद में ये पहले से, राइट। तो कमिंग डाउन, तो ये 8 अलग अलग प्रकार के आयुर्वेद के ब्रांचेस है। तो जिसमें काय चिकित्सा मतलब जनरल मेडिसिन है, काय बाल मतलब पीडियाट्रिक्स है, हाँ, काय बाल गृह चिकित्सा मतलब साइकियाट्री भी है, साइकोथेरेपी भी है, पैरासाइकोलॉजी भी है, और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी है। तो ये अलग अलग सेक्शन का अंतर्भाव वो गृह चिकित्सा में आता है। काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग चिकित्सा, ऊर्ध्वांग मतलब ये क्लैविकल जो है उसके ऊपर का जो हिस्सा है, मतलब सर, नेक, आंख, नाक, मुंह, ये सब। तो नेचुरली यू माइट हैव अंडरस्टूड कि आयुर्वेद इज आल्सो डिस्कसिंग अबाउट ऑफ्थेल्मोलॉजी, आंख की चिकित्सा, ईएनटी, नाक कान जैसे की चिकित्सा, एंड न्यूरोलॉजी, सर की चिकित्सा, एंड मुखरोग, मुखरोग मतलब डेंटिस्ट्री, उसके लिए भी वर्णन और अलग सी ब्रांच है, अलग से डिवीजन है आयुर्वेद में। काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य, शल्य चिकित्सा मतलब सर्जरी, सर्जरी के बारे में भी आयुर्वेद में काफी सारे वर्णन है और उपाय दिए हुए हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि भाई पाइल्स है, तो पाइल्स कितने भी बार आप सर्जरी करो एलोपैथी में, कई लोगों को बार बार होते रहता है। तो हम लोग आयुर्वेद में पहले तो शमन चिकित्सा देते हैं ओरल मेडिसिन से, और ठीक होता है। नहीं हुआ तो उसके लिए क्षारसूत्र चिकित्सा है, या फिस्टुला इन अनो के लिए क्षारसूत्र चिकित्सा है। तो कई सारी शल्य चिकित्सा आयुर्वेद में वर्णित है, आज भी उसको यूज करते हैं कई सारे लोग, राइट। शल्य दंष्ट्रा, दंष्ट्रा चिकित्सा मतलब टॉक्सिकोलॉजी, किसी बाइट हो गया, स्नेक बाइट है, स्कॉर्पियन बाइट है, और कुछ चीजों का बाइट है, तो उसके लिए भी वर्णन, क्या दवा देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, वो एक अलग ब्रांच है। जरा चिकित्सा मतलब जो वृद्धावस्था में पहुंचे, उनकी अपनी एक दुविधा रहती है, उनकी अपनी एक प्रॉब्लम्स रहती है, उसके लिए चिकित्सा जेरियाट्रिक्स, इसका नाम एलोपैथी में आज है। और जो कई डिकेड से मतलब कई दशकों से है, खाली आयुर्वेद में 5000 साल से, राइट। एंड जरा वृषान, वृक्ष चिकित्सा या रसायन चिकित्सा मतलब रिज्यूनेशन थेरेपी या प्रोवोस थेरेपी, तो जिसमें आपको ताकत, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, और वृक्ष चिकित्सा मतलब जिसमें आपका बच्चों को क्रिएट करने के लिए अगर कोई खामी है तो उसको ठीक करने के लिए ऐसे जो चिकित्सा पद्धति है उसको वृक्ष चिकित्सा या रसायन चिकित्सा मतलब इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चिकित्सा। जैसे आपने आयुष काढ़ा पिया सब लोगों ने वो समय में, तो उसका जो चयन किया गया आयुष से, तो उसमें ये ध्यान में रखा गया कि भाई ये रसायन द्रव्य है। रसायन मतलब केमिकल नहीं, रसायन का संस्कृत में अर्थ है रसायनम तो यद ज्ञेयम यद जरा व्याधि विनाशनम। जरा मतलब बुढ़ापा, व्याधि मतलब बीमारियां। तो जो चिकित्सा आपको बुढ़ापा होने से और व्याधि मतलब बीमारी होने से रोक देता है, उसको कहते हैं रसायन चिकित्सा। और रसायन चिकित्सा का सबसे आसान तरीका है जो घर में आप कर सकते हो, मतलब आंवला, और जो आज अवेलेबल है, आज सीजन है आंवले का, तो रोज एक आंवला खाए तो मेरे ख्याल से जो हम लोग कहते हैं ना एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, दैट इज गुड फॉर वेस्टर्नर्स। इंडियंस के लिए क्या होना चाहिए, आंवला डे कीप्स डॉक्टर अवे, राइट। तो वो सब लोग खाए, अलग अलग प्रमाण में खाए, अलग अलग प्रकार से खाए, राइट। सो कमिंग डाउन टू आयुर्वेद के जो अलग अलग मैंने चेंजेस बताए, मतलब ब्रांचेस बताए, उसके अलावा आयुर्वेद कहता है कि ये पूरा दिनमान जो है वो हम कैसे संभाले, सुबह उठने से रात तक हम क्या करें, तो उसको कहते हैं दिनचर्या। हाँ? तो जैसे हम लोग पेपर पढ़ते हैं, अभी कोविड के बाद बहुत लोग कम पेपर पढ़ने लगे, सब लोग मोबाइल में भी पढ़ते हैं, हाँ। बट एक जमाना था जब भी न्यूज पेपर पढ़ते थे हम लोग, राइट, हाथ में लेके। तो उसका नाम मराठी में वृत्त पत्र, वृत्त पत्र, पत्र मतलब पेपर, वृत्त मतलब जिसमें न्यूज आती है। तो वैसे ही हम स्वस्थ कैसे रहे इसका वर्णन जो सेक्शन में दिया है आयुर्वेद में, उसका नाम है स्वस्थ वृत्त। लिखो, स्वस्थ वृत्त,
जो सेक्शन कहता है कि हम कैसे ठीक रहे, तो उसका वर्णन आपके पास P4 कंप्यूटर है दिमाग में, तो आप लिख नहीं रहिए। अच्छा कोई बात नहीं, लास्ट में आपको क्वेश्चन करूंगा मैं। हाँ, तो आपको ध्यान रहेगा कितना याद है कितना नहीं। हाँ, स्वस्थ वृत्त, राइट। सो ये स्वस्थ वृत्त के अंदर वापस सेक्शन से एक है दिनचर्या, बाद में है रात्रिचर्या, एंड फाइनली है ऋतुचर्या। दिनचर्या, रात्रिचर्या एंड ऋतुचर्या। सो दिन में करने वाली चर्या, चर्या मतलब किस प्रकार से आप टोटल डे में समय व्यतीत करेंगे, क्या क्या एक्टिविटी करते हुए आपका समय व्यतीत करेंगे, उसको कहते हैं दिनचर्या। रात्रिचर्या मतलब सोने के टाइम, सोने के बाद उठने तक आपका एक्टिविटी कैसे रहने वाला है। तो ऑब्वियसली और कुछ आप नहीं करने वाले हो, वर्णन उसमें नहीं आएगा, बट आपका सेक्स लाइफ कैसा रहना चाहिए अलग अलग ऋतु के अनुसार, उसके बारे में भी वर्णन बिना हिचकते हुए आयुर्वेद करता है, तो उसको कहते हैं रात्रिचर्या। एंड फाइनली ये दिनचर्या रात्रिचर्या टोटल जो ऋतु अलग अलग आते हैं, अलग अलग जो सीजनल चेंजेस होते हैं, उसके अनुसार ये कैसे बदलते जाता है, उसको कहते हैं ऋतुचर्या। ठीक है, ये क्लियर हुआ? क्योंकि ये 3 आपको टॉपिक है पर्टिकुलरली आपके ये कोर्स के संदर्भ में, तो वो आपको पता होनी चाहिए क्या उसके मतलब है। एंड फाइनली देयर इज अनदर वृत्त, ये तो स्वस्थ वृत्त के एक्टिविटी बेस्ड चीजों की चर्चा की हमने। एंड देयर इज वन मोर सेक्शन जिसमें कोई एक्टिविटी दैट वे नहीं है बट इनडायरेक्ट वे, वो क्या है कि हम लोग कैसे बर्ताव करें, तो उसको कहते हैं सदवृत्त। सदवृत्त, सदवृत्त, सदवृत्त नहीं, हाँ सदवृत्त, सद हा वृत्त, हाँ सदवृत्त। सत, सत मतलब अच्छा इस अर्थ में, हाँ सत मतलब सत्य वो भी है, और यहाँ सद मतलब अच्छा इस अर्थ में लेना है। सदवर्तन म्हणतो ना आपण, तो सदवृत्त, तो सदवृत्त इज इक्वल टू सदवर्तनच एक्चुअली, राइट, फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। नाउ वी विल गो वन बाय वन। अभी तक किसी को कुछ समझा नहीं है? इवन ऑनलाइन यू हैव गॉट एनी क्वेश्चंस? इफ एनी क्वेश्चन इज देयर काइंडली आस्क मी राइट नाउ, so then we can shift next to different topics. Okay, so we are going with this दिनचर्या first. तो दिनचर्या में ऑब्वियसली उन्होंने फर्स्ट श्लोक जो है अष्टांग हृदय नाम का ग्रंथ आता है, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठे। तो ब्राह्म मुहूर्त मतलब क्या, तो सूर्योदय से अमुक समय पहले, हाँ मॉर्निंग का जो प्रहर है या सूर्योदय अभी अभी होना है, फुटना है, उसके पहले थोड़ा, हाँ अभी आई एम नॉट गेटिंग इनटू टेक्निकल डिटेल, इतने मिनट पहले वगैरह छोड़ दो। हाँ, आज के जमाने में कितने लोग 3:30-4 बजे उठते हैं? हाथ ऊपर करो। अरे वाह, आप लोग तो महान हो, आपको नमस्ते। हाँ बट हाँ 5 बजे ठीक है, व्हाटएवर, सो गुड गुड गुड। 3 बजे क्यों? और सोते कितने बजे हो? हाँ सच्ची में कितने बजे सोती है आप? तो क्लास ज्वाइन करके 12 बजे? ये तो उल्टा गड़बड़ हो गए मतलब। अच्छा ओके ओके ओके, लेट मी वन सेक लेट मी टेल एट दिस मोमेंट ओनली कि ब्राह्म मुहूर्त मतलब भले यू नो बिफोर सनराइज उठना है, बट आज के युग में संभव नहीं है सबके लिए, कोई ना कोई कारणवश लेट सोते हैं, पढ़ाई करते हैं या जो भी कोई काम है। आई एम नॉट गिविंग छूट टू दोज हु सी व्हाट्सएप, आई एम नॉट सेइंग डू दैट इफ यू आर बिजी ऑन चैनल्स, हाँ नेटफ्लिक्स देखते हो या एक पूरा का पूरा सीजन एक दिन में खत्म कर रहे हो, तो गलत चीज है, राइट। बट देन कोई कारणवश से आप लेट सोते हो, जैसे इन्होंने कहा 12 बजे सोते हो या 11 10:30 बजे सोते हो, तो इवन इफ यू आर नॉट गेटिंग अप वेरी अर्ली अराउंड 4 o'clock या 6 o'clock, 7 बजे भी चलो आप पकड़ लेते, 7 बजे उठ जाते हो, तो वो आपके लिए आज के युग में ब्राह्म मुहूर्त जैसा ही है। हाँ
क्योंकि उसमें 2 पार्ट आते हैं कि आपको कम से कम 7 घंटा नींद आवश्यक है। तो अगर आप 12 बजे सोती हो तो आपको 7 बजे उठना चाहिए, और अगर आप 3 बजे उठती हो तो कैलकुलेट बैकवर्ड, तो कितने बजे सोना है देख लो आप। हाँ, तो वो ध्यान दो। अगर आप ज्यादा सोए तो भी आपको हार्ट अटैक और बाकी सब संभावना होती है। अगर आप लेट सो जाओ तो भी आपको कार्डियक प्रॉब्लम, सेरेब्रल प्रॉब्लम्स, एसिडिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, चिड़चिड़ापन, फोकस नहीं होना, कंसंट्रेशन नहीं होना, ये सब चीजें हो सकती है। तो जास्त झोपही वाईट आणि कमीही वाईट, अति तेथे माती, अति झोपलात तरी वाईट, कमी झोपलात अति तरी वाईट. So you need to sleep appropriately, right? तो ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठे मुखमार्जनम आचरेत. पहिला क्या करना है, सुबह सुबह उठ के लोग क्या करते हैं, 2 लीटर पानी लेते हैं और खटाखट पी जाते हैं. कई लोग, आपकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है. तो 2 लीटर 3 लीटर पी जाते हैं एंड पूछते हैं उनको, भाई क्यों पी रहे हो. सर कितना टॉक्सिन भरा पड़ा रहता है पेट में, एसिड ही एसिड रहता है, तो उसको निकाल देना चाहिए. तो किसने कहा भाई, तो फलाना चैनल में बाबा जी है, फलाना चैनल में गुरुजी है, फलाना क्लास में नेचुरोपैथी के सर है. अलग अलग लोग अलग अलग तरह से बताते हैं. अगर आपको शास्त्र क्या कहता है वो सुनना है, उसमें भी आयुर्वेद क्या कहता है सुनना है, तो मैं कह रहा हूँ सुबह उठने के बाद पहले मुखमार्जनम आचरेत, पहले मुंह को वॉश कर लो. तो आज के तारीख में ब्रश कर लो, राइट. पहले जमाने में ब्रश नहीं था, तो वो काढ़ी आती थी, दत्तवन आता था, तो वो नीम का या उसके अलग अलग वनस्पति होती है, उसके दातुन का वो लेके उसको ब्रश करके ऊपर काट के उससे हम दांत साफ करते थे, मुंह साफ करते थे. येस प्लीज. नाही नाही चालत, नाही 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 नाही, चुकीचं आहे. त्याचं कारण सांगतो का नाही. इन्होंने कहा गर्म पानी सुबह उठने के बाद छोटा पिया तो चलेगा क्या. हाँ, वार्म पानी पीना चाहिए, ब्रश करने के पहले पीना चाहिए था. उसका आंसर है ना. क्योंकि रात भर आपके मुंह में जो माइक्रोब्स क्रिएट होते हैं, खाना खाने के बाद में कई लोग रात में भी दातुन करते हैं, ब्रश करते हैं. तो ये कई लोगों का कहना है कि रात में तो करते हैं, तो अभी वापस सुबह नहीं किया तो चलेगा, तो इसलिए वो लोग बेड टी पीते हैं. सुबह सुबह बेड पे टी आता है और पी जाते हैं, क्योंकि घर में नौकर चाकर 10 रहते हैं, तो चलो मैडम को कॉफी लगती है तो कॉफी पियो, चाय पियो. अपने यहाँ संस्कृति ऐसी नहीं है. और आम तौर पे यहाँ मेरे ख्याल से 1 2 और में तीसरा, हम 3 ही मेल से, तो ये कबूल करेंगे कि बहुत कम घरों में सुबह उठ के पुरुष चाय बनाते. हाँ बनाते, हाँ मैं भी बनाता हूँ कई बार. हाँ, बट आमतौर पे स्त्रियों को ही खड़े होके वो बनाते है ना. तो बेड टी वगैरह तो आपके लिए छोड़ दो, मगर गर्म पानी पीना भी गलत है, क्योंकि ये अंदर जो माइक्रोब्स है आपके, वो आप अंदर ले जाते हो उसको. तो चाइनीज ने कहा है, जापानीज ने कहा है, कहने दो उनको. हमारे लिए, हमारी संस्कृति में, हमारे पद्धति में, चिकित्सा पद्धति में, आयुर्वेद में इसकी मान्यता नहीं है. Sir, can I ask a question? यस यस प्लीज. सर एक्चुअली अभी रिसेंटली क्या मेरी डॉटर जैसे B12 डेफिशिएंट डायग्नोज हुई थी, एंड आई हैव अ फ्रेंड हु इज इनटू आयुर्वेदा, एंड हाँ. आई वाज जस्ट डिस्कसिंग विथ हर, तो उसने मुझे बताया कि वेजिटेरियंस के लिए वैसे भी बहुत कम सोर्स है. देन शी टोल्ड मी अ हैक कि अगर आप रात को जैसे आपने ब्रश किया है एंड मॉर्निंग उठते ही सुबह सुबह आप पानी पीजिए, थोड़ा सा लीजिए और गुड़गुड़ करके करिए, और उसके बाद उस पानी को पी जाइए. सो इज इट ट्रू कि उसने बोला इससे It's B12 wrong, that's what बढ़ता I'm है? saying. See, ये जो आपकी कलीग है, with due respect to her, she should go back and cross check the original text. क्या होता है, अपने ऊपर संस्कार हो जाते हैं. आपने BMS कर रखा है, बाद में 50 अलग अलग लोगों से संपर्क में आने के बाद अलग अलग लोग अलग अलग चीजें बताते हैं, और उसमें हम भूल जाते हैं कि ओरिजिनल क्या है. तो मैं ये नहीं कहता हूँ गलत है या सही है, मैं ये कहूंगा कि इनको वापस एक बार, शी शुड गो बैक टू दी ओरिजिनल टेक्स्ट एंड चेक एंड लॉजिक अप्लाई करना. हम सब लोग योग वाले बैठे हैं, राइट.
तो योग में एक स्थिति आती है, इसमें क्या कहते हैं हम लोग कि संप्रज्ञात समाधि के पहले वाली स्थिति है। बोलो क्या होता है? सत्सद विवेक बुद्धि जागृत होनी चाहिए, है ना? तो अगर वो जागृत हुई तो ऐसे प्रश्न ही नहीं आएंगे। जो अपने शब्द प्रमाण दिए, आगम प्रमाण दिए, प्रत्यक्ष है, अनुमान है, तीनों लगा लो, आपको उत्तर मिल जाएगा। राइट? ये प्रॉब्लम जब ये आती है जब हम लोग और चीजों का पकड़ा हमारे ऊपर बैठ जाता है, तो समझते हैं हाँ ये B12 और ये ठीक है, आई एम नॉट सेइंग नो, बट B12 बढ़ाने के और तरीके, आप बाद में मुंह साफ करके एक प्याला दूध पीजिए, B12 ऐसा ही बढ़ना है। उसके लिए आपका वो जो माइक्रोब्स है उसको निकलने की कोई आवश्यकता नहीं है। इज इट क्लियर? Okay, sir. Thank you, sir. So where were we? So when you get up, you should cleanse your mouth. सर and you- सॉरी लिटिल कैन आई आस्क? सॉरी Yeah, सर, yeah. सॉरी टू इंटरप्ट। बोलो। सर ये मैं आपसे बिल्कुल एग्री कर रही हूँ ऑन अ लॉजिकल ग्राउंड, पर ये उषा पान का इतना मतलब फैलावा हो गया। एक मिनट, we are covering that, but just hold on because you will get your answers in the due lecture. अगर एकदम से कोई चीज और जा रही है तो you can stop me, okay? तो यहाँ ध्यान पे रखने की चीज क्या है कि ये जो मुख मार्जन करते हैं, जो मुंह को साफ करते हैं, आजकल बहुत सारी टूथपेस्ट या जो पाउडर्स है ये मीठी रहती है, और आयुर्वेद कहता है मीठा आपको मुंह साफ करने के लिए नहीं यूज करना है। ये कंपनियों का अपना तरीका है कि सब लोग वो यूज करें, अट्रैक्ट करने के लिए वो मीठा यूज कर रहे हैं। क्या होना चाहिए कि कड़वा, तीखा और कशेला, तुरट, कडू आणि तिखट, कडू, तुरट आणि तिखट, कड़वा, तीखा और कशेला, ये रसों के, रस मतलब टेस्ट के द्रव्यों का चयन हमको मुंह साफ करने के लिए करने चाहिए। उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, वो बता नहीं रहा हूं क्योंकि अपने पास समय कम है। तो ऐसे कौन सी चीजें तो आपके नीम है, ऐसे कौन सी चीजें तो दातुअन है, वज्रदंती है, ये जो हम देखते हैं ना अलग अलग प्रोडक्ट्स में, तो वो जो है वो उसमें वो चीज पड़ती है। तो ऐसे आप उत्पादन देखे, मैं यहाँ बैठा हूं तो इट इज अनएथिकल टू नेम दी प्रोडक्ट विद द ब्रांड नेम, पर आप लोग सयाने हो, आप लोग देखो कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स है कि जिसमें मीठा नहीं है, राइट? एंड ये जो चीजें है, ये कड़वी, तीखी और कशेली, ऐसे वाली जो पाउडर्स है, ऐसे वाली जो आज के युग में बनाई जाने वाली पेस्ट है, ऐसे चीजों को आप प्रयोग में लाए तो आपके मसूड़े, आपका दांत ये ज्यादा अच्छे से सही रहता है। और आप देख के हैरान हो जाएंगे, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो ये दांत रक्षा के एरिया में, उन्होंने भी अभी आयुर्वेदिक का उनका अपना पेस्ट का निर्माण किया और लाए। तो आपके हाथ में कि क्या करना है, राइट? तो कमिंग डाउन टू, हाँ येस प्लीज, हाँ वेल, मीठ सुद्धा खूप जास्ती प्रमाणात वापरू नये। मीठ मान्य, हळद चालेल कारण हळद ही कषाय रसात्मक आहे, हळद म्हणजे तुरट असते म्हणून ती चालेल, पण मीठ आहे हे लवण आहे, मधुराम्ल लवण रसाची द्रव्ये वापरू नयेत कारण ॲनिमल घिसायची शक्यता असते, आम्ल घेतलं तरी शिरशिरी येते, मधुराने कीड लागू शकते, म्हणून हे 3 रस टाळावेत, कडू, तिखट आणि कषाय तुरट हे वापरावेत। यस प्लीज। मैं ब्रांड नेम नहीं बता रहा हूं, आप सुजान हो, आप तय करो। आपको ये 2 कान के बीच में एक फैकल्टी दी है, उसको यूज करो, ठीक है? हाँ नहीं, यहाँ गलत है, नहीं गलत। नेक्स्ट नाउ आफ्टर डूइंग मुखमार्जन, जो मैडम ने पूछा अभी, कल्पना मैडम थी, उनका क्वेश्चन था पुशअप पान करना चाहिए कि नहीं। आपने, आपका नाम, शुभ नाम? अभिषेक ऐसा है क्या? अभिषेक, मुझे लगा अभिषेक ऐसा भी नाम, तो ठीक है। तो अभिषेक ने बताया भाई गर्म पानी पीना चाहिए कि नहीं, तो वहां प्रावधान आता है ऊषप पान। तो ऊषप पान मतलब, उषा मतलब सुबह का समय, पहाटेची वेळ, उषा काळ, ओके? लड़की का नाम नहीं, नॉट पीटी उषा। ऊषप पान, सुबह सुबह जो पान करना चाहिए वो उसका नाम है ऊषप पान, ओके?
तो वो आप कर सकते हैं मुख को क्लींस करने के बाद। कितना? एक छोटा प्याला, अराउंड 100 to 150 ml, नॉट 2 liters, नॉट 3 liters, राइट। और वो किसका लेना चाहिए? तो गर्म पानी का ले सकते हो, राइट। किस में लेना चाहिए? कई लोग मेरे को एज अ डॉक्टर मिलते हैं पेशेंट के तौर पे कि सर हम लोग तो तांबे की कलश में पीते हैं। बोला वेरी गुड, क्यों पीते हैं? तो नहीं, हमारे गुरुजी ने बताया। चलो अच्छी बात है। कितने बार वो तांबे की कलश आप साफ करते हो? करता हूँ ना सर। कितने बार करते हो? हफ्ते में एक बार तो पक्का करता हूँ। अच्छा, अंदर से देखते हो कैसा रहता है वो? हाँ, अच्छा रहता है। बोला काला काला थोड़ा सा उसमें लेयर आती है कि नहीं? आता है, काला लेयर आता है। अगर काली लेयर आती है तो आप अमृत नहीं पी रहे हो, आप क्या पी रहे हो? विष पी रहे हो, क्योंकि वो क्यूप्रिक ऑक्साइड बन जाता है। और ये क्यूप्रिक ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन के संपर्क में जब तांबा आता है, उसमें पानी पड़ा रहता है, और अगर आपने क्लींस नहीं किया रोज के रोज, तो ये क्यूप्रिक ऑक्साइड का काला लेयर बन जाता है। और उसकी वजह से आप खुद को बेनिफिट नहीं कराते हो, आप खुद को नुकसान कराते हो। तो ऐसे कंडीशन में दो ही चीज आती है कि आप अगर तांबे के कलश में पीना है तो रोज के रोज को साफ करो, और अगर ये संभव नहीं है किसी वर्ष, तो आप स्टेनलेस स्टील में पियो, आप चांदी के बर्तन में पियो, अगर घर में चांदी है वो भी रोज के रोज क्लींस करो। आप अगर अंबानी हो तो सोने में पियो, राइट। तो वो धातु के गुण उसमें आते हैं, और इसके लिए वो पानी पीना अच्छा माना है। आज के युग में स्टेनलेस स्टील इज सेफ, तो स्टेनलेस स्टील भी चलेगा। कांच के बर्तन में पियो, हो सके तो प्लास्टिक में ना पियो, क्योंकि प्लास्ट्यूल्स करके जो माइक्रो प्लास्टिक पार्टिकल्स आते हैं, वो अगर हमारे अंदर चले गए लंबे समय तक तो तकलीफ दे सकते। ठीक है। देन कितना पीना है? तो 150 ml पीना है। और गर्म पीना है, ठीक है, गर्म पीजिए। वो गर्म पानी में हम लोग शहद डाल के पिए, नींबू निचोड़ के पिए, चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा। हाँ हाँ, क्योंकि ये कॉमन मिस्टेक मैंने कितने साल सुधार रहा हूं। जो लोग संभल गए, निकल गए बाहर, नहीं तो वही पड़े हैं अंदर। अगर शहद और गर्म पानी साथ में लिया तो वो आपके अंदर त्वचा रोग की निर्मित करने में समर्थ है, ऐसा लिखा गया है। अगर शहद को आपने गर्म करके पिया तो वो विषवत है, ऐसा विधान आयुर्वेद में है। तो विष मतलब वो हम लोग देखते हैं पिक्चर में, वो टेररिस्ट को पकड़ा, वो कैप्सूल खाई साइनाइड की, लुटक गया, वैसा वाला विष है क्या? नहीं। बट ये स्लो पॉइजन है, ये टॉक्सिन है। ये जैसे रोज आप करते गए करते गए करते गए, तो एक समय आएगा जब भी इससे आपको अलग अलग स्किन डिसीजेस को क्रिएट होना चालू हो जाता है। इसलिए आपको केवल और केवल गर्म पानी पीना है। नींबू जब आप निचोड़ते हैं गर्म पानी में, तो उसके अंदर का जो विटामिन सी है, जिसके ऊपर बहुत चर्चा होती है, तो वो सी निकल जाता है, डीएक्टिवेट होता है गर्म पानी में डाल के। तो क्या मतलब है उसका? खाली टेस्ट देता है, ये बात सही है। तो केवल गर्म पानी से पियो, और वो भी पीने के बाद आपको जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, जो आंतड़े में जो मूवमेंट हो जाती है, वो स्टिमुलेशन हो जाता है, जो आप एक कप चाय पी के भी होता है। तो लोग पूछते हैं हम चाय पिए? बिल्कुल पियो। ऋषभ पान में आपने गर्म पानी नहीं पीना है, चाय पीना है। मैं गलत नहीं, एक सेकंड, लेट मी फिनिश। तो चाय भी पी सकते हो। कई लोग बोलते हैं अरे चाय तो गलत है, योगा क्लास में तो चाय नहीं बोलते हैं। आपकी मर्जी, मत पियो, बिना चाय पत्ती की चाय पियो, वो कर सकते हो। और चाय में आपने अगर अदरक डाला है, ये ब्लैक पेपर डाला है, बाद में मसाला मत बना के डाल दिया है, तो काढ़ा बन जाता है। तो वो प्रमाण में अगर कम ले लो तो आपको लाभप्रद है। आपने इतना बड़ा मग में 2-3 बार चाय पिया तो गड़बड़ है, उसके लिए मना है। यस, यू कैन आस्क। कॉफी कुठली कॉफी? कोरी का? हा, मग तसं चहामध्ये सुद्धा लिंबू पिळून पितात, त्याला सुलेमानी चहा असं म्हणतात। तो खूप चांगला लागतो, कधीतरी प्यायला हरकत नाही, पण रोज प्यायला तर त्रास आहे। तशी कॉफी नाही, अशी कॉफी पिऊ नये रोज, असाही चहा पिऊ नये, पण आवडत असेल तर प्या, तुमची मर्जी। ओके फाइन। सो आफ्टर ऋषभ पान बाद में आपको क्या करना चाहिए?
तो उन्होंने कहा है कि आपको कवल करना चाहिए। कवल मतलब मुंह में ऑयल को धारण करते एंड पकड़ते। हाँ, गुडगुड गुड करतात तो गंडूश, अलग अलग चीज आहे. ज्याला तुम्ही आता दाखवताय असा तो घुमाते हो तो गंडूश. कवल मतलब केवल धारण करणं, म्हणजे एवढ्या मात्रेमध्ये इतनी मात्रा में आप ऑयल अंदर डालो कि वो पूरा फूक जाए और आपको ऐसा लगे कि अरे निकल के बाहर आ रहा है और आंख से आंसू आ जाए कभी कभार, हाँ वो रख के, तो दैट टाइम यू आर सपोज टू थ्रो इट, राइट. सो दैट इज कवल धारण. गंडूश में कम मात्रा में धारण करके घुमाते, गार्गल्स घुमाते, गार्गल भी नहीं एक्चुअली, उसमें ही घुमाते हो. हाँ, तो कवल गंडूश दोनों है ये. हाँ हाँ, सर आप एक्सप्लेन करेंगे ये ऑयल जो ऑयल माउथ में भरते हैं ऑयल उसका? ऑयल ऑयलिंग या ऑयल से, पानी से हम लोग गार्गल करते हैं. पानी से जो ये कोविड वगैरह में किए थे, दैट इज नॉर्मल पानी वाला. बट आयुर्वेद में जो वर्णन है वो ऑयल से, राइट. एंड वो कैसे करते हैं सर? अभी यहाँ तो दिखा नहीं पाऊंगा, बट लिया आपने नहीं जो यानी गार्गल करना है कि खाली भर के रखना है मुंह में और भर के स्पिट रखना, आउट उसको करना है? कवल कहते हैं. और गार्गल भी उसका रॉन्ग वर्ड है, बट आपको एक साइड से दूसरे साइड में मूव करना घुमाते है. रहना है। हाँ, और एक 2-3 मिनिट के बाद उसको थूक देना, ठीक आहे. अँड उसके बाद नाही, तुमचा तोंड किती मोठं लहान तुम्हाला माहिती ना, त्यात 2 चमचे भरतील किंवा 5 चमचे भरतील. नंतर बघू काय करायचं ते बघा, आधी मी सांगतो ते ऐका. हा, त्याच्यानंतर हे कळलं का, इथपर्यंत कळलं. हे केल्यानंतर आफ्टर दिस यू आर सपोज टू क्लीन्स इट वंस अगेन विथ गरम पानी, राइट. अच्छा चलो, आपका क्वेश्चन को इधर ही ले लेते हैं. जो पहला मुखमार्जन है उससे जो बढ़ा हुआ कफ है, क्योंकि सुबह का काल जो है ये कफ का काल है, तो उसमें कफ को कम कराने वाले जो द्रव्य है, रस है, जैसे कटु तिक्त कषाय, कड़वा तीखा कशैला, उसको हम यूज करते हैं. और बाद में मैंने बताया कवल और गंडूश का, तो इससे स्नेह पूर्ण होता है, तो वात नहीं बढ़ता है आगे के समय में, राइट, दिन के समय में. बाद में तिल का तेल, यूजुअली नॉट अदरवाइज, बहुत सारे लोग कोकोनट ऑयल भी यूज करते हैं, बट आई इंसिस्ट कि कोकोनट ऑयल की जगह तिल का तेल, तिल्ली का तेल, तिराता तेल, सिजमी ऑयल, उसको डिप करे अपनी उंगली 2 बार या 3 बार एंड अंदर रख के खींचो ऊपर. तो 1 बार 2 बार, इधर 1 बार 2 बार, तो 2-2 ड्रॉप्स एक एक नासिका में, एक एक नॉस्ट्रिल में खींचना है. उसको बोलते हैं नस्य या नावन क्रिया. नस्य या नावन क्रिया. तो इससे दिस इज नोन एज मर्श, प्रतिमर्शनस्य. प्रतिमर्शनस्य उसका जो टेक्निकल टर्म है प्रतिमर्शनस्य, राइट. ये पंचकर्म में हम लोग जब भी नस्य करते हैं उसके पहले हमको स्नेहन करना पड़ता है, घी खिलाना पड़ता है, फिर सीम देनी पड़ती है काढ़ों की, फिर जाके उसको नस्य कराते हैं. उसमें कभी कभी 4 बूंद डालते हैं, कभी कभी 10 डालते हैं, कभी कभी 16 डालते हैं, कभी कभी 22 भी डालते हैं. तो ये अपने आप में बड़ा प्रोसेस है ये. वेराज प्रतिमर्श जो दिया है 2 बूंद रोज डालो, ये कोई भी आदमी जो स्वस्थ है और जो डिसीज भी है उसको डॉक्टर के सलाह के अनुसार डिसीज को, और स्वस्थ लोगों के लिए ग्रंथों में लिखा है सब लोग करें, तो ये मैं बता रहा हूँ, है? तो उसको 2-2 बूंद खाली डालना है. यस, आई एम कमिंग टुवर्ड्स इट, कि एक तो तिल्ली का तेल और अदरवाइज गाय का घी. तो गाय का घी जब डालते हो तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि गाय का घी थिक हो जाता है, थिस्त मराठीत म्हणतो आपण, ठंडी में गाढ़ा हो जाता है. या कभी कभी बॉटल्स में आप देखते हो कि ऊपर लिक्विड रहता है और नीचे गट्ठा गट्ठा रहता है, तो ये गट्ठा वाला जो घी है वो इसमें यूज नहीं करना है. अगर करना है तो उसको कटोरी में लेके वाटर बाथ में पानी लेके गर्म पानी में वो कटोरी रख के उसको द्राव बनाना है, और वो द्राव का 2 बूंद आपको यूज करना है, वो ध्यान रखिए, ठीक है. भैंस का घी नहीं डालना है.
बादाम का तेल, आपके घर में बादाम के 10 झाड़ लगे, आप कर सकती हो, मगर विधान नहीं है। प्रावधान है गाय का घी या तिल का तेल, 2 चीज करिए। हाँ, बाद में उन्होंने कहा सर कि यस प्लीज। सर ये कवल धारण और गंडूश के लिए कौन सा तेल इस्तेमाल करना है? तिल का तेल, तिल का तेल, तिल का का तेल कॉमन। अगर कोई बीमारी है तो तभी हम लोग कुछ अलग तेलों की चर्चा होती है, बट दिनचर्या में वो नहीं होगी। ठीक है, फाइन। उसके बाद में समय आता है कि कभी कभार ये नस्य करने के बाद में धूम्रपान भी देते हैं। धूम्रपान मतलब सिगरेट बीड़ी पीना नहीं, हुक्का पार्लर में जाके हुक्का पीना नहीं। हाँ, क्योंकि उसमें तंबाकू रहता है। उसका यंत्र तो सेम रहता है, आप घर में लाके रख सकते हो, मगर उसमें जो कल्प रहते हैं, उसमें जो वनस्पति रहती है वो अलग रहती है, राइट। बट अंडरस्टैंड कि आज के युग में हम लोग धूम्रपान नहीं करते, मैं भी नहीं करता हूँ, राइट। इवन आयुर्वेदिक वे से भी नहीं करता हूँ। तो उसके आगे वाला इमीडिएट कौन सी प्रोसीजर है, तो है स्नान। स्नान करना चाहिए, राइट। तो क्यों करना चाहिए, तो स्नान से उन्होंने कहा है कि ये आपको ऊर्जा देता है शरीर में, उत्साह बढ़ाता है शरीर का, है ना। कई कबार पेन, एक्स एंड पेन्स है तो वो भी ठीक करने वाला है। तो कई सारे उसके एडवांटेजेस स्नान के उन्होंने बताए। तो कैसे करने चाहिए स्नान, शास्त्र में क्या लिखा है, तो उन्होंने कहा है कि ऊपर का जो शरीर है, मतलब शरीर जो माथे के नीचे का शरीर है, हेड से नीचे वाला पोर्शन है, उसको आप गर्म पानी से स्नान करें, गर्म पानी से स्नान करें। और जो ऊपर का जो पार्ट है, हेड का जो रीजन है, उसको आप कंपैरेटिवली ठंडा पानी से आप स्नान करें, हाँ, कोमट आणि खालचं गरम। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि भाई 6 ऋतु में 12 महीनों में मैं ठंडे पानी से ही नहाता हूँ। हाँ, तो मैं कर रहा हूँ, सही है कि गलत है? जहां तक आपको तकलीफ नहीं है तो सही ही सही है। जिस रोज आपकी रीढ़ की हड्डी पकड़ लेगी, जॉइंट चालू हो जाएंगे पेन होने, कोई आसन की स्थिति में नहीं पहुंच पा रहे हो, प्रतीत होगा, तो समझ लो आप में वात बढ़ गया है। तो क्या करना चाहिए, वात का उपक्रम मतलब गर्म पानी से नहाना चाहिए। ये नहाने के पहले भी एक छूट गया, उसको कहते हैं अभ्यंग। अभ्यंगम आचरित नित्यम, मतलब क्या करना है, ऑयल से अपने शरीर को खुद से खुद, किसी के सामने जाके मत बैठो लगाओ ऑयल। हाँ, आयुर्वेद कहता है खुद से खुद लगाना है आपको। क्या लगाना है, तिल का तेल, तिल का तेल, और बाकी ऑयल्स की चर्चा नहीं है। और कैसे लगाना है, उसको थोड़ा सा गुनगुना करना है, गर्म करना है, थोड़ा सा नमक डालना है। ये कई ग्रंथ में है, कई ग्रंथ में नहीं, बट यूजुअली कराते हैं कि 1 कटोरी भर तेल या आधा कटोरी, तो 1 पिंच सॉल्ट डालो और उससे मसाज करो। कैसे करना है, तो ऊपर से नीचे ऐसे आना है। ऐसे करते हैं हम लोग, स्वीडिश में पढ़ा है ना, शायद देखा होगा, स्वीडिश मसाज, हार्ट की तरफ, या हार्ट की तरफ नहीं, यहाँ बोलते हैं वातानुलोमन होना चाहिए, तो ऊपर से नीचे। और केरला सिस्टम में जाओ तो वो ऊपर से नीचे भी जाते हैं और नीचे से ऊपर भी आते हैं, बट आयुर्वेद ने कहा है ऊपर से नीचे। हाँ, तो वो ध्यान रखे। ओके, सो ये अभ्यंग करने के बाद कुछ समय तक रुको, वो तेल को एब्जॉर्ब होने का समय दो, उसके बाद में आप स्नान के लिए जाओ और स्नान करो। हाँ, उसके पहले भी, अभ्यंग के पहले आप पाउडर्स रहती है, वो पाउडर से उल्टी दिशा में, यहाँ उल्टी दिशा आती है, आप ड्राई मसाज करते हो, जिसको कहते हैं उद्वर्तन, उद्वर्तन, या हिंदी में उपटन, या मराठी मध्ये उटणे। सो वो करना चाहिए। तो उससे भी कई सारे फायदे हैं, रोमरंध्र जो है वो रोमकूप खुले हो जाते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, छोड़ दो। हाँ, तो वो, हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, दिवाली में करते हैं। तो मैं मेरे पेशेंट को बोलता हूँ आज से रोज दिवाली फॉलो करनी है। हम लोगों ने कल दिवाली मनाई ना, तो ऐसे नहीं, रोज मनानी है बिना पटाखे फोड़े, घर में ये सब करो, दिवाली दिवाली। ठीक है, तो ये उपटन लगा के बाद में फिर आप बैठो, गर्म पानी से स्नान करो। हाँ, आपणच करायचा, कोण बसणार तुमच्यासाठी रोज? अहो तेल लावलेलं असतं ना मॅडम। हाँ, ओके ओके, उनका क्वेश्चन बहुत संयुक्तिक है।
आपने सुनो सुनो सुनो, आपने ऑयल लगाया, ऑयल की लेयर है, राइट, और वो ऑयल की लेयर जितना ऑयल जाना चाहिए उतना अंदर पहुंच गया विद प्रॉपर वे। आप ये कर्म के अभ्यंग, मसाज नहीं यूज कर रहा हूं मैं शब्द, अभ्यंग। तो अभ्यंग करने के बाद में जितना क्वांटिटी ऑयल जाना चाहिए वो पहुंच गया, फिर भी ऑयल ऊपर है, तो वो ऊपर वाला ऑयल को निकालने के लिए ये उपटन की या उद्वर्तन की विधि है। गॉट इट? तो ये आप एक्स्ट्रा ऑयल को निकाल देगा और एक्स्ट्रा दोषों को भी वो बाहर निर्गमन कराता है, राइट। मगर वो करने के लिए आप ध्यान दे के करो, एकदम उत्साह में जोर से करो तो स्क्रैचेस आ जाते। कोई लोग ये उद्वर्तन के लिए स्क्रब यूज करते हैं, कई लोग करते हैं, मतलब शास्त्र में प्रयोग नहीं है, बट आज जो युग बदल गया उसके अनुसार कुछ लोग वो पत्थर का प्रयोग करते हैं, बट वो सब नहीं करना है अपने को। पाउडर्स जो है वो पाउडर्स का यूज करना है। कौन सा यूज करें? तो जो उपटन आप सब लोग जानते हो दिवाली में, वो आप यूज कर सकते हो। चंदन पाउडर के नाम पे लकड़े के भूसे पे सैंटालिनम अल्बम का स्प्रे मारते और आपको थमा देते। आप 200 रुपया दे के वो पाउडर लेते, वो मत यूज करना चंदन पाउडर। मुल्तानी मिट्टी भी नहीं यूज करो। हाँ, सबसे बेस्ट चना, चना का लोट या उडदाची, मसूर, मसूर, उडद नाही मसूर। उडदाने अजून चिकटून जाल तुम्ही भिंतींना, उडद चिकट आहे आपण तेच महत्वाचं आहे मसूर। ओके, ठीक है। सो कमिंग डाउन टू स्नान। ओके, स्नान होने के बाद में आप फ्रेश हो गए, अभी निकलना है घर से बाहर, तो भोजन भीजन आ गया। अभी भोजन के ऊपर बात करूं तो अपने को 3-4 लेक्चर लगेंगे, तो आई एम स्किपिंग, फास्टिंग कर रहा हूं उसके लिए। आगे चलो, आगे जाके निकलने का टाइम उन्होंने कई जगह बताया कि आपका ड्रेस कैसा होना चाहिए। तो स्वच्छ, साफ सुथरा, पूरा शरीर को ढकने वाला, ऐसा वर्णन दिया है। और ऋतु अनुसार होना चाहिए। अगर उष्ण ऋतु है, जैसे ग्रीष्म है, मई का मौसम है, अप्रैल का मौसम है, और आपने एकदम टाइट कपड़ा पहन के चल रहे हो, बहुत अच्छा क्यों ना हो, तकलीफ देगा। और ठंडी का मौसम है और आप एकदम कुछ पतला सूती कपड़ा डाल रहे हो तो भी गलत है। तो आपको ऋतु के अनुसार उसका प्रावधान लेना चाहिए, राइट। बाद में टोपी डालने का विधि है, दूसरों को नहीं, खुद को। हाँ, तो बाहर निकलने के टाइम टोपी डाल के जाए, वो टाइम में। हाँ, बाद में दंड लेके चलो, दंड मतलब काटी, क्योंकि वो समय में आज जैसे रास्ते वगैरह नहीं थे, तो आज भी जो लोग गांव से है उनको पता रहेगा कि रास्ते में आप काठी ये ठोक के चलते तो सांप और बिच्छू और ये सब है अलग साइड में जाते, आपका रास्ता सेफ बन जाता है। तो उसका वर्णन उन्होंने कहा है। पादत्राण मतलब चप्पल, शूज, उसका भी वर्णन आयुर्वेद करता है कैसे होने चाहिए, राइट। तो ये सब चीजों का वर्णन दिया है। आगे जाते उन्होंने कहा है दिनचर्या के टॉपिक में ही, जो कि सद्वृत्त में भी आता है, कि आपका वर्तन आपके परिवार में, आपके मित्र परिवार में कैसा होना चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि आपको उन जो आपके फ्रेंड्स है उनको हमेशा हेल्पफुल आपका वर्तन होना चाहिए। आप उनको दुख ना पहुंचे ऐसे भाषा होनी चाहिए, या आपका जो भी चीजें बात करने की या हेल्प करने की होनी चाहिए। देन कभी आपको बहुत तकलीफ देने वाली कोई परिस्थिति हुई तो आप बहुत दुखी नहीं होने चाहिए। आपको बहुत ज्यादा सुख देने वाली कोई चीज हुई तो आपको बहुत एक्साइट नहीं होने चाहिए। तो आपको समत्व भाव में रहना चाहिए। ऐसे आयुर्वेद में दिनचर्या के टॉपिक में बताया है, जो योग भी कहता है, जो गीता में भी बताया है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभा जय जय हो। तो जो समभाव रखने वाला जो है, वैसी स्थिति में आपको हमेशा बनाए रखना है। ऐसी जो वर्णन है वो है दिनचर्या। गॉट इट? ये कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सबसे आसान करके मैंने लाए थे श्लोक वगैरह, मगर मैंने नहीं बताया क्योंकि संस्कृत के लिए गड़बड़ रहेगी आपकी, है ना, और लिखने के लिए प्रॉब्लम है। नाउ वी विल गो टू रात्रिचर्या। रात्रिचर्या में इतना सारा कुछ नहीं है, मगर उसमें एक चीज है कि आपका शयन विधि कैसा होना चाहिए, आपके बिस्तर कैसा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। नीचे अगर सोते हो तो थोड़े ऊंचाई पे होना चाहिए, कुछ रखो, ऐसे चीजों का वर्णन है। एंड शीतकाल में
आप मैथुन कुछ लेवल तक कर सकते हो, उसके लिए मना नहीं किया है। मगर उष्ण काल जब आता है, मई वगैरह का सीजन है, तो तब आपका बल कम रहता है, तो वहां आपको संभाल के उसका मैथुन का प्रयोग करना चाहिए। मतलब उष्ण काल में बिल्कुल मैथुन ना करे ऐसा भी नहीं कहा है, बट अधिकतम मात्रा में अगर करने जाए तो आपका बल का ह्रास होगा, ओजों का ह्रास होगा, इसलिए वो समय संभाल के युक्ति पूर्वक आपको ये आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसा क्लियर निर्देश है। तो ये हुई रात्रिचर्या। ठीक है, नाउ कमिंग डाउन टू ये ऋतु, ऋतुचर्या। तो ऋतु मतलब सीजन, ओके, ऋतु मतलब सीजन इक्वल टू। तो कौन मुझे बताएगा मराठी या हिंदू, फॉरगेट मराठी, हिंदू धर्म के अनुसार 12 महीने कौन से हैं? जनवरी से दिसंबर सबको याद है। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, वैशाख, ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद। एक एक मछली बाजार नहीं, चैत्र वैशाख, ज्येष्ठ हाँ, आषाढ़ श्रावण भाद्रपद अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन। चलो। तो आप में बहुत सारे लोगों को ये याद है, तो अभी मैं बोल रहा हूँ वैसे लिख लो, और वैसे ही टेबल फॉर्म में लिखो तो आपका टॉपिक इजी हो जाएगा एग्जाम के लिए भी, है ना। फर्स्ट कॉलम में लिखो उत्तरायण। खड़ा, एक मिनट में लिखता हूँ, एक सेकंड। उत्तरायण, हाँ, एंड यहाँ दक्षिणायन। काय झालं, लोकांना वाटलं मला ओरिएंटेशन नाही की काय, मला माहिती आहे कसं लिहायचं। ओके, इसका नाम है आदान काल। इसका नाम है विसर्ग काल। ऐसा ही लिखो आपके इसमें भी। ओके, अभी यहाँ शिशिर लड़के का नाम नहीं है, ऋतु का नाम है। वसंत, ग्रीष्म, बाद में वर्षा शरद हेमंत। हा, हे ओळीतल्या, त्याच्या पुढे महिने येतील, तो माघ, बरोबर नाही, माघ फाल्गुन। बाद में ये माघ फाल्गुन, देन चैत्र वैशाख, देन ज्येष्ठ आषाढ़, श्रावण भाद्रपद, अश्विन कार्तिक, आणि मार्गशीर्ष पौष। ओके, आता याच्या पुढे वी हॅव टू रिमेंबर
कुठला सध्याचा करस्पॉन्डिंग मंथ है, कौन सा मंथ इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार, क्योंकि हम लोग वही यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ मिड ऑफ जनवरी टू एक महीना छोड़ना है और उसके बाद का महीना लेना है। तो मिड जनवरी से मिड मार्च, फिर ये मिड मार्च, मार्च अप्रैल मई, मिड मई, ये मिड मई, जून जुलाई, then mid July to August, mid September, mid September to mid November, mid November to नहीं मिड जनवरी, अभी ये ध्यान में कैसे रखना है, तो बारिश कभी आती है, जुलाई, जुलाई, हाँ जून जुलाई, पण जोरात कधी कोसळतो, जुलाई, श्रावण, सिंपल। तो एक को पकड़ो फिर आगे का सर्कल हो जाता है, क्योंकि कहाँ से चालू करना है ध्यान नहीं रहता है कई सारे लोगों को, तो वो अगर ध्यान में रहे तो इजी होता है। बाद में ये शीतकाल है, बाद में यहाँ उष्ण है, यहाँ भी उष्ण है, यहाँ वर्षा है, यहाँ वापस वर्षा है, और यहाँ शीत है। आपण म्हणतो ना ऋतू कितने, 3, उन्हाळा पावसाळा हिवाळा। तो उन्हाळा पावसाळा आणि हिवाळा, शीत मतलब हिवाळा, मराठी में जिसको लिखना है वैसे लिखो, जाड़े का ये है वो अकॉर्डिंगली लिखो, ठीक है। इसमें कफ बढ़ जाता है, इसमें वात बढ़ जाता है, और इसमें पित्त बढ़ जाता है। ये चीज खाली ध्यान रखो, हो गया, फाइन। तो अभी इसमें क्या है, ये हर एक का अपना वे से एक्सप्लेनेशन है। ये एक्चुअली हम लोग जब पढ़ाते हैं मेडिकल कॉलेज में, आयुर्वेदिक कॉलेज में, तो एक एक ऋतुचर्या के ऊपर 2-2, 3-3 लेक्चर चलते हैं, तो वहां आपके यहाँ वो लेना संभव नहीं है, ठीक है। आपको खाली क्या ध्यान रखना है, वो खाली ध्यान रखो कि ये समय में जो अवेलेबल है और जो सीजन है, वो सीजन को देखते हुए यू हैव टू टेक योर डाइट, यू हैव टू डू योर क्रिया। क्रिया मतलब मैं योग की क्रिया नहीं कर रहा हूँ, डे टू डे प्रैक्टिसेस, राइट। जैसे वसंत में आम आते हैं, वैसे आम तो पहली पेटी अभी आ गई, कल ही न्यूज आई टीवी में, बट वो यथाकाल नहीं है, सीजन के अनुसार वसंत ऋतु में आता है, मई वगैरह में हमको मिलता है, राइट। सो वसंत में किधर गया वसंत, देखो इधर, हाँ मार्च टू मई, तो वो समय में उन्होंने कहा है कि गर्मी है सब जगह, तो आपको सूती कपड़े पहनो, व्हाइट कपड़े पहनो, छाव में रहो, धूप में नहीं चले जाओ। बाद में जो सुवासिक द्रव्य है उसका आपको निकलना है, भागो भागो, नो प्रॉब्लम, हाँ बिल्कुल, हाँ थैंक यू। सो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको आपकी ऋतुचर्या का फॉलो करना होगा, राइट। एंड उसमें उन्होंने खास करके बताया वसंत पेय, लिख लो वसंत पेय, वसंत में जो लेने वाला है, ग्रीष्म में नहीं, ग्रीष्म नहीं, वसंत में, वसंत में
तो वासंतिक पेय म्हणजे काय, तर पन्ह, कैरी का कच्चा आम जो है कैरी, उसका पन्ना बनाते हैं अपने यहाँ, है ना। तो वो पीने के लिए बताए ताकि आगे जाके वो कंट्रोल करे, कफ जो बढ़ा हुआ है उसको कंट्रोल करे। ते सोडून द्या, ते तुम्हाला आता कठीण आहे जायला समजायला. मग त्याला चय आहे, प्रकोप आहे, प्रशम आहे, प्रसर आहे, ते 6 वेगवेगळ्या अवस्था आहेत, त्या तुम्हाला अपेक्षित नाही सांगणं सुद्धा, राईट. तुम्ही फक्त महत्वाचं बघा की काय तुम्हाला अगदी नक्की लक्षात राहिलं पाहिजे तेवढं सांगतोय मी, राइट. तो त्यावेळेला उस समय में वो वासंतिक पेय का पीने के लिए विधान दिया है, राइट. बाद में जैसे ठंड का मौसम है, शिशिर ऋतु है, तो तभी या ठंड का मौसम कौन सा है, और यहाँ नीचे आता है हेमंत है, हेमंत और शिशिर में हम देखते हैं ठंडी ज्यादा है, तो तभी यूजुअली, और इवन 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 एक सेकंड ना, इवन मिड जनवरी, सो ये समय में यू हैव टू टेक मोर ऑफ स्नेह द्रव्य, घी, तेल, उसमें पकाए हुए या क्रिएट किए हुए जो पदार्थ है वो आपको सेवन करने के लिए बताया, और वो आपको बिना ऋतुचर्या सीखे ही पता है। आप दिवाली कभी मनाते हो, वही समय में। आप तिलगुल का लड्डू कभी खाते हो, वही समय में, राइट। आप कभी मई में याद करो, तिलगुल का लड्डू मिलता है या फड़के स्टोर में या और कई स्टोर में, तो लेके खा रहे हो चैंपियन से उठा के, नहीं खाते हो ना, क्योंकि आपको बताया गया है कि ये समय में नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना है ये उनको शायद पता नहीं होता है, बट ट्रेडिशनली ये लोगों को पता है, अपने जो बुजुर्ग है उनको ये चीज बताई गई है, तो अकॉर्डिंगली हम लोग लेते हैं, राइट। मूड में आया तो पूरन पोड़ी हालांकि मिलती है, अभी 40 रुपया 2 पैकेट मिल जाता है ना, 80 रुपए में जो भी है, बट वो अलग ऋतु में खाओ तो आपको तकलीफ होती है। तो वही चीज वही ऋतु में खाना, ये उसके पीछे शास्त्रीय कारण है, वो आप ध्यान में रखो, ठीक है। तो वो आप फॉलो करेंगे तो इट विल बी गुड। देन वर्षा ऋतु जब भी आता है, श्रावण भाद्रपद है, मिड जुलाई से लेके सितंबर है, या टू दी एक्सटेंड अप टू लेवल ऑफ नॉट नवंबर, बट थोड़ा पहले पहले तक, राइट। तो जब भी वर्षा ऋतु चला है, खास करके वर्षा, तो वर्षा ऋतु में उन्होंने कहा है वात का प्रकोप होता है, बाहर के वातावरण में भी वात बढ़ा हुआ रहता है, वात बहुत चलायमान होता है, इसलिए बादल आते हैं, इसलिए बारिश होती है, राइट। वैसे ही शरीर में भी वात बढ़ा हुआ रहता है, और शरीर के जो अंदर दोष, अलग दोष है, कफ है और पित्त है, उसको चलाने वाला कौन है, वाती है। पित्त अपने आप चलता नहीं है, कफ अपने आप चलता नहीं है, ये चलाने वाला कौन है, तो वात है। तो ये अगर वात वर्षा ऋतु में बाहर बढ़ रहा है सृष्टि में, तो शरीर में भी बढ़ रहा है, तो क्या ये सही होगा कि हम, किसी ने बताया है करके रोज उठ के स्प्राउटेड मूंगी खाए, खाते हैं लोग, बाफेला मूंग खाता हूं, अरे भैया मत खाना, नहीं मगर है हमारे योगा टीचर ने, नमस्ते, क्योंकि अगर आप वो समय में ये खाओ, मला मटकीची उसळ आवडते मला, आणि नेमक्या त्या काळात उसळीच करतो आपण जास्ती, कारण पालेभाज्या मिळत नाहीत, तो सब्जियां नहीं मिलती है, इसलिए क्या बनाते, उसल बनाते। तो उसल भी अगर खाओ तो प्रमाण में ही खाना चाहिए, और नहीं के बराबर खाना चाहिए आइडियली, क्योंकि वो खाए तो आपका वात पक्का बढ़ जाता है। तो ये ऋतुचर्या का महत्व है कि अगर आपको ऋतुचर्या पता है, तो आगे कोई भी बैठा है बंदा, आयुर्वेद का हो, होम्योपैथी का हो, नेचुरोपैथी का हो, योगा का हो, वो जो उसको पता है वो बताएगा। मगर अगर आपको इसका लॉजिक पता है कि ये क्यों करना है, क्यों नहीं करना है, तो ऐसे प्रमाद, प्रमाद जानते हो ना शब्द, किसको बोलते प्रमाद, आलस नहीं, प्रमाद मतलब जो मुझे पता है कि ये गलत है फिर भी मैं कर रहा हूं, उसको कहते हैं प्रमाद। जो अंतराय बताए योगा में 11, उसमें एक प्रमाद है। तो ऐसा प्रमाद हम नहीं करेंगे कि हमको पता है बात बढ़ाने वाला है, फिर भी हम लोग खाते हैं। क्यों खाते हैं, क्योंकि डायटिशियन ने बताया, ठीक है, उसको बैठ के अपना
काम चलाना है, पैसा कमाना है, तो वो तो बताएगी या बताएगा जो भी बंदा है, राइट। सो यू शुड नॉट ईट वात प्रकोप चीजें तभी। अलग एक बात इसमें और आती है कि पित्त है, फॉर एग्जाम्पल शरद में पित्त ऋतु है, पित्त का प्रकोप है। हाँ बोलो, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है तो बोलो, बोलो बोलो। अच्छा, शरद ऋतु में पित्त का प्रमाण बढ़ता है, तो शरद में हम लोग कहते हैं कि वासंतिक पित्त बढ़ाने वाली चीजों को कम खाए। तो क्या चीज पित्त को बढ़ाती है? तीखा, स्पाइसी, चटपटा, खट्टा, तला हुआ, तो ये चीजों को हम कम प्रमाण में खाएं। ओके, सो दिस इज इन नटशेल ऑफ ऋतुचर्या। अदरवाइज हर ऋतु की चर्या अलग से 2 घंटा बात कर सकता हूँ बट वहां वो आज वो अपना ये नहीं है, मतलब लिखा है आपको टॉपिक में लिखा है, बट 2 घंटे में क्या बात कर पाएंगे। और आपको बिना आयुर्वेद समझाते खाली ये बात करता तो वो भी सयुक्तिक नहीं थी, इसलिए ये सब आगे पीछे बताना पड़ा। और एक आता है इसमें सद्वृत्त। हाँ हाँ, रेगुलरली नहीं बताया मैंने, देखो आपका ध्यान नहीं था। मैंने बताया वर्षा ऋतु में जब धूमधाम बारिश चालू है तभी आप स्प्राउट ना लो तो बेहतर। अरे केवढ्या गोष्टी आहेत अख्ख्या जगामध्ये, भात आहे, गहू आहे, तांदूळ आहे, तुम्ही ऐका ऐका ऐका, तुम्ही डाळी खाऊ शकता पण तुम्ही स्प्राउट्स नाही खाऊ शकत, फरक आहे दोन्हीमध्ये। वाफवलेले आणि मोड आलेले कडधान्य खाऊ नये। मी असं नाही म्हटलं तुम्ही मूग खाऊच नका, मूग तर दिलं आयुर्वेदात खा म्हणून, पण आम्ही सांगतो मुगाचे दाणे भाजा किंवा मुगाची डाळ वापरतात लोक, ती भाजा कढईमध्ये अशीच तेल तुपाशिवाय, आणि लालसर भाजून घ्या, काढून घ्या आणि त्याचं कढण बनवा। कढण म्हणतो ना आपण, पीठ वेगळं, हा पीठ करून त्याचा चिला बनवून खा, किंवा त्याची डाळ बनवा, तुम्ही आमटी बनवा आणि खा, भाताबरोबर खा, त्या तुमच्या चपाती बरोबर खा, भाकरी बरोबर खा, काही प्रॉब्लेम नाही। किंवा या सगळ्या ग्रेन्सना भाजा आणि मिक्स ग्रेन त्याचं काहीतरी थालपीठ बनवा तरी चालेल, नो प्रॉब्लेम। पण जे काही खाल ते असं असायला पाहिजे की जे पचायला हलकं पाहिजे आणि वात वाढवणारं नसलं पाहिजे। पावसाळ्यामध्ये उलावा असतो, आर्द्रता असते, दमटपणा असतो, त्याला विरुद्ध काय तर वृक्ष, म्हणून डाळी भाजून आपण थालपीठ खातो, कळलं? किंवा तुम्ही भाकरी बनवता, सो भाकरी का बनवतो आपण? भाकरी बनवताना सुद्धा त्याच्यावरती भर्जन संस्कार असतो, म्हणजे डायरेक्ट विस्तावर भाजतात। आता आजकाल काही जणी तव्यावर भाजतात, कारण त्यांना विस्तावर भाजता येत नाही, हात भाजतो म्हणा किंवा शिकलेल्या नसतात बिचाऱ्या, लाटून भाकऱ्या करतात, अशाही बघितल्यात मी। भाकरी हाथावरती करायची असते, पर वो हाथ के ऊपर नहीं कराते, वो बेलन से कराते। ठीक है, करो जिस प्रकार से करना है करो, मगर उसके पीछे का वो कार्य कारण भाव क्या है वो ध्यान में रखो, ठीक है। जैसे आप पूरण पोड़ी खाते हो तो आपने देखा है पूरण पोड़ी कैसे खाते हैं? 3 प्रकार से खाते हैं, चौथा प्रकार नहीं है। कौन से 3 प्रकार बताओ? घी डाल के खाते हो और दूध में डालते, और तीसरा नारळाच्या दुधात। कटाची आमटी, परफेक्ट। तो ये 3 प्रकार से खाते। क्यों खाते? क्योंकि मम्मी ने दिया है, क्योंकि सासू माँ ने बताया है। हाँ, गैसियस है तो उसको गरम ठंडा स्निग्ध क्या कर है? देते हैं। सॉरी सॉरी, वो दाल जो गैसियस है उसको थोड़ा स्निग्ध करने के लिए। वेरी गुड। ये चना दाल यूज की है, चना दाल ये वात को सबसे बढ़ाने वाली है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, वात को कंट्रोल करने के लिए स्निग्ध मतलब घी वो डालते, राइट। या तो उसको दूध में डुबो के खाते हैं, तो दूध भी स्निग्ध है, इसके लिए भी वो काम करता है। और कभी कभार ये जो खाते हैं इससे अपचन होता है, तो इसलिए कटाची आमटी जो हम लोग बनाते हैं उसमें सब तीखा और हजम करने के लिए व्यंजन है, तो वो उसमें आ जाता है। तो ये हर एक चीज में लिखा हुआ है कि कैसे करना है। आपको पता है हम दाल राइस खाते हैं रोजाना, हाँ, तो क्यों खाते? भात, वरण भातच का खातात? आणि
वरण भात म्हणतो आपण, भात वरण नाही म्हणत. का म्हणतो? अहो म्हणतो का, पत्याचा काय संबंध आला? हा, वर्णाला वरण का म्हणतात? मग वरून भात सांगायला पाहिजे. यू आर क्लोज बट यू आर नॉट एक्झॅक्ट. इट क्रिएट्स आवरण. वरण ये शब्द आया आवरण से, ये भात के ऊपर आच्छादित करता है, राईस को ये डाल आच्छादित करती है, इसलिए वर्ण भात. झालं का? आपला वेळ झाला की मला सांगा तुम्ही. हाँ, सो वो इसलिए करते हैं क्योंकि जो राइस हम लोग खाते हैं वो क्या है, कार्ब है. आधुनिक विज्ञान के अनुसार कार्बोहाइड्रेट है वो, है ना. तो उसके ऊपर ये प्रोटीन का आच्छादन होता है और वो भी मिक्स करके उसके ऊपर घी पड़ता है, तो फैट्स आ जाती है. उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ते हैं तो विटामिन सी वगैरह, अम्ल रस भी आ गया. एंड फाइनली अचार या चटनी भी मिक्स करते हैं. तो ये अपना आहार षड्रसात्मक होता है. मधुर भी है, अम्ल भी है, लवण भी है, तीखा भी है, कड़वा भी है, कशेला भी है, पूरा आ जाता है. एंड ये जो घास हम लोग अंदर लेते हैं तो अपने जो आंत है, जो इंटेस्टाइन है या इवन स्टमक है, उसमें उसका आचूषण नहीं होता है कार्बोहाइड्रेट का टू दैट एक्सटेंट. तो मेरे पास जो पेशेंट आते हैं डायबिटीज के, वो पूछते सर हमको आप बताएंगे राइस बंद करना है? बोला नहीं, खा तू, पर कम खा. मतलब कितना खा? अगर 1-2 राइस का घास है तो उसके दुगुना या तिगुना आप उसमें डालो और एंजॉय करके खाओ. ऐसा नहीं कि इतना हंडी भर के राइस खाओ. ठीक है. और अगर संभव है तो ये राइस में भी आप रेड राइस अगर मिलता है तो वो खाओ, या ब्राउन राइस खाओ, तो वो खाओ तो और भी सोने पे सुहागा. क्योंकि मुझे पता है वो खा ही नहीं पाएंगे ज्यादा, तो खा नहीं सकते हम. 2-4 निवाला खाया तो पेट भर जाता है ना. तो ये चबाना पड़ता है वो भी, है ना. तो ये सब चीजें हमारे पूर्वजों ने बहुत युक्तिपूर्वक लिखी है और सजा के रखी है. हमें उसको फॉलो करने की जरूरत है. इसका मतलब ये नहीं कि हम बाकी चीज नहीं खाना है, खा सकते हो, बट रोजाना नहीं खाओ. बीच बीच में कभी कभार खाना है तो खाओ, बट बेसिकली आपको ये चीज के ऊपर ध्यान दो. नाउ कमिंग डाउन टू सद्वृत्त. ओके. तो सद मतलब अच्छा, वृत्त मतलब वर्तन, सदवर्तन. हाँ, कैसे करना चाहिए. तो उसके पहले एक थोड़ा सा अलग विषय है, वो पहले बताता हूँ, फिर इसमें हम जाएंगे तो समझने के लिए आसान होगा. आयुर्वेद कहता है कि हमारे शरीर में बेसिकली 2 टाइप के प्रवृत्तियां होती है, इच्छाएं होती है. तो उसको टेक्निकल वर्ड है वेग. हाँ, वेग. वेग मतलब वेग आना, मतलब वो इच्छा का निर्माण होना, अर्ज क्रिएट होना. अर्ज इंग्लिश में प्रॉपर शब्द अर्ज. तो 2 टाइप के वेग है, एक है अधारणीय वेग और एक है धारणीय वेग. अधारणीय वेग मतलब जिसको हमको नहीं फॉलो करना है. आपको जैसे लगता है वो वेग आया, जो इच्छा हुई, तो तुरंत उसको कर डालो, उसको रोको मत. रोकेंगे तो गड़बड़ है. ऐसे कुछ है. और कुछ है कि जिसकी इच्छा हुई, मगर वो इच्छा हुई तो उसको दबा दो, उसको धारण मत करो, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी. क्या है मैं बताऊंगा थोड़े समय के बाद. ठीक है. तो जैसे पहला उन्होंने बताया कि पेशाब की फीलिंग आ गई, हमको यूरिन पास करना है, क्लास चल रहा है, हम लोग सोए शवासन में, अभी 5 मिनट ही बाकी है, 10 मिनट ही बाकी है, अभी कैसे हाथ ऊपर करके बताए जाना है, तो होल्ड करते हैं, है ना. या छींक आ रही है जोर से, तो छींकते नहीं, होल्ड करते हैं. खांसी आ रही है, खांसते नहीं क्योंकि गलत रहेगा. लेक्चर चल रहा है, मीटिंग चल रही है ऑफिस में, तो वो धारण करते हैं, राइट. या नींद आ रही है, कुछ कुछ लोग झपकी मार रहे थे, मैं देख रहा था, सब लोग सुन रहे थे, तो झपकी मार रहे थे, तो वो धारण करना चाहिए. तुरंत के तुरंत नींद आई है, सोना चाहिए. नहीं सोए तो आपको तकलीफ होती है. क्या तकलीफ है वो सब वर्णन है आगे, राइट. बट ये सब है, उसको बोलते हैं अधारणीय वेग. इसको आपको होल्ड नहीं करना चाहिए, उसको आपको कर डालना चाहिए.
तो ये वात विणमूत्र क्षौत्र क्षुधा, भूख लगी है खाना चाहिए, प्यास लगी है पीना चाहिए। हाँ, यहाँ तक कि छर्दी रेतसा, उल्टी आ रही है उल्टी कर देनी चाहिए। रेतसा मतलब पुरुषों में या इवन स्त्रियों में टू सम एक्सटेंट, बट खास करके पुरुषों में, कि रेतस मतलब स्पर्म इजैकुलेट हो रहा है, तो हो रहा है होने दो, होल्ड नहीं करो, राइट। बट कुछ लोग वो भी होल्ड करने की चेष्टा करते हैं ब्रह्मचर्य के रॉन्ग कंसेप्ट के अनुसार, तो वो आगे जाके तकलीफ मंद हो सकता है। तो ये है अधारणीय वेग। भूख लगी खाओ, प्यास लगी पानी पियो, उल्टी लग रही है उल्टी करो, हाथ डाल के नहीं करो, आ रही है इधर तक तो करो, राइट। नींद आ रही है नींद लो, हाँ, छींक आ रही है छींको, खांसी आ रही है खांसो। सो ऑल दीज आर अधारणीय वेग। उसको धारण नहीं करो, तुरंत उसको फॉलो करो। बट रास्ते पे जाते समय आपको वैसे वर्षा क्रॉस क्रिस क्रॉस, मतलब लड़कों को लड़की के प्रति, लड़कियों को लड़के के प्रति, हाँ, कोई व्यक्ति दिखी बहुत सुंदर है बहुत अच्छी है, कि जाके मेरे को उसको हक करना है, बहुत अच्छी है तो मेरे को जाके पकड़ना है या किस करना है, ये आपको इच्छा हो रही है, आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो इसको धारणीय वेग है, ये धारणीय वेग है। मुझे किसी के ऊपर बहुत गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया इतना गुस्सा आया कि जाके उसका गला दबा दूं या उसको खत्म कर दूं, मार दूं, बहुत जोर से हिचकी आ रही, मारू इसको पकड़ के, मार सकते हैं क्या, नहीं, जो मारते हैं उसको बिहाइंड बार जाते या थाना या पुणे के जेल में डाल देते, मेंटल हॉस्पिटल, राइट। या जो आपको कहते हैं ना कि षड रिपु, कौन से षड रिपु, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, तो ये जो 6 है, ये 6 बंदों को कंट्रोल में रखना मतलब सद्वृत्त सद्वर्तन। आपको इच्छा हो रही है बट आप कंट्रोल कर रहे हो उसको, राइट। क्रोध आ रहा है कंट्रोल कर रहे हो, लोभ हो रहा है कोई चीज को चुरा लो उसको कंट्रोल कर रहे हो, मत्सर हो रहा है किसी के प्रति, उसके प्रति वर्ताव आपका अलग है, कंट्रोल करो। हाँ, ये चीज को नहीं करना चाहिए, ये इसका वर्णन इसमें आता है। देन दे आर ऑल्सो स्पीकिंग कि आपको आपके गुरु के प्रति वर्तन कैसा होना चाहिए, तो आपको यू शुड बी विथ योर मास्टर, बी विथ योर गुरु विथ एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, क्योंकि उन्होंने आपको पढ़ाया है, राइट। या आपके जो सीनियर्स है घर में, उनके प्रति आपका बर्ताव कैसा होना चाहिए, तो उनका मतलब एक लेवल रखते हुए आपको आदर पूर्वक या स्नेह पूर्वक आपका बर्ताव होना चाहिए, ये चीजें इसमें आई है। देन रुग्ण के प्रति कैसा होना चाहिए उसका भी वर्णन आता है, तो उसमें लिखा है कि आर्तः संतानवत अनुपालयत, आर्तः मतलब पेशेंट, पेशेंट को कैसे फॉलो करना है आपको, तो आपने देखा है कि ये फॉलो नहीं कर रही है, 10 बार मैंने बताया कि ये परहेज कर नहीं कर पा रही है, तो बहुत सटक गया मेरी अभी सटक गई, तो उसको धक्का मार के भगाना चाहिए क्या, नहीं। तो जैसे आपका बेटा या बेटी है तो उसको कैसे आप प्यार से समझा के बात करेंगे, हालांकि बेटा बेटी को भी आप मारते हो कभी कभार, वहां तो वो भी छूट नहीं दे रखी है, तो आपको उनको प्यार पूर्वक और युक्ति पूर्वक समझाना चाहिए। तो ऐसे सारे चीजों का जिसमें जिक्र है उसका नाम है सद्वर्तन या सद्वृत्त। इज इट क्लियर? और कुछ पूछना है? नाउ रिमेनिंग अराउंड 20 मिनट्स या 15 मिनट्स आर फॉर ओपन क्वेश्चन। अभी तक मैंने जो कहा उसमें कुछ समझा नहीं है तो आप पूछ सकते हो, बट कृपया जिसको हम बोलते हैं ना इंडिविजुअल क्वेश्चंस, सर मुझे डायबिटीज है इतने साल से, तो मैं क्या खाना खाऊं, कृपया मेरे क्लिनिक में आ जाओ, अपॉइंटमेंट ले लो, कंसल्टेशन भरो और मेरा लाभ ले लो जरूर। हाँ, बट ये विषय के अंदर कुछ चीज समझी नहीं है और आपको पूछना है तो यू आर वेलकम। यस सर। यस यस सर, आपने जो गंडूश और एक दूसरी जो क्रिया बोली सर, जो कवल, तिल के तेल कवल से और करना गंडूश। है, राइट सर, लेकिन हाँ। सर वो कितनी बार करना चाहिए, मतलब कभी आइडियली मैडम इसको रोज करने का विधान है,
बट रोज Okay. तो नहीं करते हैं लोग, राइट? Yes. बट एटलीस्ट वीक में 1 या 2 बार कर सकते हो आप। आइडियली अच्छा। रोज करने के लिए बताया। यस, Okay, okay. Thank you, sir. Sir. इसमें Sir- भी अगर आपको और स्पेसिफिक चाहिए ना, आई विल टेल, 1 सेकंड। हाँ, एक बीच में छूटा, वो भी ऐड करता हूँ, तांबूल सेवन। तांबूल सेवन, तो तांबूल सेवन मतलब पान पट्टी नहीं है। तांबूल मतलब नागवेल पत्र, मतलब पान, खाने का पान, मगर उसमें अलग अलग द्रव्यों का वर्णन उन्होंने दिया है उसमें। तो जैसे कि आपका इलायची है, लौंग है, राइट, ये चीजों को आप उसमें डाल सकते हो। कापूर है, कपूर, बाद में जायफल है, कंकोल है, बाद में जायफळ, कंकोळ, कंकोळ, वेलची, बडीशेप वगैरे नाही दिलेली, पण टाकू शकता तुम्ही, नो प्रॉब्लेम। सर कंकोल या- क्या होता है? कंकोल नाम की एक वनस्पति है, आपको मिलती है, यूज करो, नहीं तो छोड़ दो उसको। ये बाकी चीज तो डाल सकते हो ना। इसमें मेन क्या है, क्या नहीं डालना चाहिए वो ध्यान रखो। तो क्या नहीं डालना चाहिए कि तंबाकू नहीं डालना चाहिए, चूना नहीं डालना चाहिए, कत्था नहीं डालना चाहिए, सुपारी नहीं डालनी चाहिए। कापूर देवाचा कापूर, पण तो कापूर सिंथेटिक असतो। एक भीमसेनी कापूर म्हणून मिळतो, तर तो भीमसेनी कापूर थोडासा टाकतात, पण शक्यतो तोही जास्ती टाकू नका, राईट? काही गोळ्या आपण सध्या खोकल्यासाठी वारंवार खातो, नाही मी नावं घेत नाही, पण तुम्हाला माहिती असतील, आणि ती खाल्ली की बरं वाटतं, आणि मग इतके वेळा खातात लोक अज्ञानात सुख असल्यामुळे की त्यांना लघवीला जळजळायला लागतं, आणि लोक येतात लघवीला जळजळ होते, अरे पण कशाने झाली, उन्हाळा तर नाही, हिवाळा आहे, काय होतंय? मग खडून 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 विचारल्यानंतर कळतं की अमुक तमुक गोळी दिवसातनं 10 वेळा चघळतो मी। का बाबा? कारण मी लेक्चर घेतो। पण तुला माहिती आहे का त्याच्यात कापूर असतो, आणि कापराचा अधिक प्रमाणात वापर झाला तर त्रास होतो। सो यातला सुद्धा कापूर अगदी कणभर, जास्ती नाही, वडी नाही टाकायची, नाही तर आतमध्ये आग लागेल। हाँ, Sir, one more question, sir. या, सर, एक खाली पानी के बारे में पूछना है कि जैसे बोलिए। सर जितनी तरस लगे उतना ही पीना है, कि जो अभी बोलते हैं बिल्कुल 3 बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली ये दिनचर्या में नहीं है, बट ऋषभ पान में अपन पकड़ सकते हैं। जैसे मैंने बताया, ऋषभ पान में, अच्छा क्वेश्चन, पानी किती प्यायचं, कितना पीना चाहिए, प्यास लगी तो पीना है कि नहीं पीना है, ओके। तो ये सब में हमारे जो गुरु है वो है दूध पीता बच्चा। कौन? जो छोटा बच्चा जो माँ का दूध पीता है वो हमारा गुरु होना चाहिए। वो सब क्वेश्चन के लिए बहुत भूख है और माँ ने भी उसको स्तन्य पिलाने के लिए नजदीक लिया, तो मुंह फेर देता है, पीता नहीं है। जब भूख है तभी खाना खाओ, जब प्यास है तभी पानी पियो। ऐसा कोई प्रमाण आयुर्वेद नहीं कहता कि इतना लीटर पानी पियो और Yes. अभी मत पियो। कुछ लोग ने ये व्हाट्सएप पे मैसेज घूमते हैं, खाने के बाद आधा घंटा 1 घंटा पानी मत पियो। आयुर्वेद ऐसा बिल्कुल नहीं कहता है। आयुर्वेद ऐसा कहता है कि आपको खाने के पहले थोड़ा 1-2 घूंट पानी पी लो, आपका मुंह आर्द्र कर लो, है ना। उसके बाद में खाते समय घास के अंदर, जैसे हम घास लेते, उसके बीचों बीच जैसे आपको जरूरत है वैसे थोड़ा थोड़ा पानी पियो। ऐसा नहीं एक बोतल भर के रखिए तो खड़खड़ खड़खड़ पूरा पानी पिया, फिर खाने खाने बैठो, फिर खाना खाने के टाइम बिल्कुल पानी नहीं पिया, और अंत में वापस एक पूरा तांब्या भर के पानी पिया, वो भी गलत है। Okay. राइट? आपको बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पियो, स्टार्टिंग में पियो, लास्ट में पियो। फिर आगे जाते हुए उन्होंने डिसीज के अनुसार दिया है कि भाई स्थौल्य की कोई व्यक्ति है, स्थौल्य मतलब ओबेसिटी, तो उसमें पहले पानी पियो, बाद में मत पियो। आपको किसी को वजन बढ़ाना है तो बाद में पियो, पहले मत पियो। या अलग अलग अम्ल पित्त और फलाना फलाना विकार है तो उसका वर्णन और विधान अलग है, तो उससे इसमें गड़बड़ी ना करो। बट कितना पीना है, अभी ये आयुर्वेद का विधान एक अपनी जगह है। आज हम लोग 21वीं सदी में हैं, तो हमको पता है फिजियोलॉजी के या एनाटॉमी के, आधुनिक वैद्यक विज्ञान के विस्तार से
कि शरीर अपना 1 से 1.5 लीटर यूरिन क्रिएट Yes. करता है दिन में, तो उतना क्रिएट होने के लिए कम से कम 1.5 लीटर होना चाहिए कि नहीं पानी। मगर Yes. ऐसा नहीं कि एक समय में 1.5 लीटर पियो, थोड़ा थोड़ा आगे बीच बीच में करते करते कंप्लीट करो। क्या होता है, जब भी ठंड का मौसम है, जैसे अभी का मौसम है, तो प्यास ही नहीं लगती है और आदमी मुश्किल से 800 ml पानी पीता है, तो वो भी गड़बड़ है, वो भी गलत है। तो Right. वहां ये ध्यान में रखते हुए ऋतु का क्या विचार है, अकॉर्डिंगली भी पानी पीना चाहिए। या ग्रीष्म ऋतु है तो आपको बहुत प्यास लगती है, तो आप 1.5 लीटर नहीं रुकते हो, 2-2.5 लीटर तक पानी पी जाते हो। Right. तो बहुत एक्सट्रीम दोनों चीज में टालो। जैसे मैंने पहले बताया, 2-2, 3-3 लीटर पानी सुबह पीना वो भी गलत है, और एकदम से नहीं पीना ये भी गलत है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। Yes, yes, sir. Thank you. एंड अगर आप ठंड में हो और ठंड के प्रदेश में हो, जैसे हम घूमने जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुंबई से निकल गए आप कहीं हाई एल्टीट्यूड में गए, जैसे हिमालयन एरियाज में। अभी मैं लास्ट 1-1.5 महीने पहले मैं आई वॉज एट गंगोत्री। तो गंगोत्री में तो ये रोज का विधान था, जो पानी पीने देते थे हम लोग को वो गर्म ही पानी देते थे, ठंडा पानी देते ही नहीं थे। एंड वी वर सरप्राइज कि अरे ये लोग ऐसे कैसे। तो उधर के जो पंडित थे गांव के, तो बोलते सर हमारे यहाँ तो पुरखों से पता है, हम लोग ठंडा पानी पीते ही नहीं है। हम लोग जब खाने बैठे, हम लोग को जो परोसा गया खाना और साथ में पानी दिया, वो भी पानी गर्म था। Okay. जब हम लोग राजस्थान में थे, गर्मी के मौसम में थे, तो वहाँ नॉर्मल पानी था मटके का, हालांकि वहाँ फ्रिज था। और उन्होंने कहा सर अगर बुरा ना मानो तो आप ये पानी पियो, वो पियो तो आपको तकलीफ होगी। बोला भैया मैं पूछने वाला था, तो मुझे मटके वाला देना, सुराही का पानी आता है ना वो दिए। तो देखो गांव गांव में आज भी लोगों को बिना ठप्पा, बिना एमडी, बिना पीएचडी, बिना बीएमएस आयुर्वेद का ज्ञान है, और वो यूज करते हैं उसका। पानी के साथ आज भी गांव में जाओ, पानी ऐसे ही पिलाते नहीं है, कोई आया बाहर से गुड़ के साथ पानी देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि ऐसे ही पानी दिया तो गट 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 पानी पीते जाएगा, तो उससे उसको नुकसान होगा। ये जानते हुए उनको साथ में गुड़ देते हैं। और गुड़ इसलिए भी देते क्योंकि गुड़ मीठा है, तो मीठा ये वात को घटाने वाला है, आपको इमीडिएट ताकत देने वाला है, इसलिए गुड़ और पानी देते हैं। आजकल हम लोग चाय पिलाते हैं, तो चाय में भी शक्कर है तो बुरी बात नहीं है, पर चाय में गुड़ वाला चाय सबसे बेकार है, क्योंकि दूध ये शीतवीर्यात्मक है और गुड़ ये उष्णवीर्यात्मक है। तो हर गुड़ की चीज ये आरोग्यदायी नहीं है। आप ये एडवर्टाइजमेंट पे मत जाओ, आरोग्यदायी गुड़ है कुछ एक हद में, दूध और गुड़ मिक्स करना गलत है। Okay. ठीक है, और कोई क्वेश्चन? सर नस्य का टाइमिंग सर, जो सवेरे पहले तो है मुख प्रक्षालन के बाद, और रात को भी कई बार सुना है कि रात को भी रात में नस्य, देते हैं मगर वो दिनचर्या में नहीं आता है वो। दिनचर्या के लेकिन कर सकते हैं जो आप स्नोरिंग, करा सकते जिनको हैं, आपको स्नोरिंग की कराना आप तकलीफ है। बिल्कुल करा सकते हैं, बिल्कुल। अगर आपको नेजल प्रॉब्लम नहीं है, अगर अंदर नाक में कोई बीमारी नहीं है तो करा सकते हैं। अगर नाक भरा हुआ है श्लेष्मा से, जैसे सर्दी है, बहुत भर गया है नाक, तो क्या डालेंगे उसमें? नहीं डाल सकते हो, है ना। नहीं, जिनको स्नोरिंग की प्रॉब्लम है उनके लिए। नहीं, अभी वापस ये इंडिविजुअल आ गया। प्लीज कॉन्टैक्ट डॉक्टर फड़के, आई विल गिव माई कॉन्टैक्ट नंबर। Yes, we sir. can definitely see to it how it can be managed। बट ये ऐसा गलत होगा, इसका कारण बताऊं कि आयुर्वेद में कहा है कि रोगी आद्यो परीक्षित ततोनंतरम औषधम। रोगी को पहले देखो, परखो, जानो, उसके बाद में दवा या बाकी चीज जो है वो बाद में बता। एनीथिंग एल्स? सर एक सर क्वेश्चन उषा पान से रिलेटेड। सॉरी, सर सर एक क्वेश्चन है उषा पान से रिलेटेड। उषा सर पान। सर जो उषा पान जो है, बोलते हैं कि सर पानी जो है वो बैठ के पीना चाहिए। सर कोई पार्टिकुलर सिग्निफिकेंस है उसका? ओके, बैठ के पीना चाहिए ऐसा विधान कहीं लिखा तो नहीं है, बट आमतौर पे भी ना बैठ के खाना खाना चाहिए। हाँ, आजकल ये नई विधि है जिसको बोलते हैं बुफे। हाँ, खड़े रह के और इतने जल्दी जल्दी में खा लेते कि भाई पीछे और 4 लोग है, किसके प्लेट का अपने ऊपर गिर रहा है, और देखना है अरे बाप रे उधर अभी जलेबी खत्म हो रही है तो दौड़ो और पहले ही निपट लो उसको। हाँ, तो ये खड़ा खड़ा खाना गलत है।
वैसे खड़े खड़े पानी पीना भी गलत है, बिकॉज योर गट बिकम स्ट्रेट, तो पैसेज जल्दी हो जाता है। आप बैठ के खाते हो पलथी मार के, तो उसका पैसेज अपने आप में रुक रुक के विथ अंतराल से वो हो जाता है। दैट इज अनदर वे। अदर वे, आप पलथी मार के बैठते हो जैसे पद्मासन है या कोई भी सुखासन है, तो आपकी ब्लड जो सर्कुलेशन है यहाँ रुक जाती है when you are crossing the legs, and then that blood is available for your pelvic floor and partly for the abdomen, तो डाइजेशन के लिए वो आसान होता है इसलिए भी। Thank सर you, sir. उषापान में प्लेन वाटर भी पी सकते हैं ना, नॉर्मल रूम टेम्परेचर हाँ की बिल्कुल, गर्म? अगर गर्म पियो तो बेहतर, इसलिए पीना है क्योंकि वो उषा में पीना है, मतलब सुबह के समय में पीना है जब ठंड रहती है। तो प्लेन वाटर क्यों पीना है? अगर इतना आप परिश्रम ले रही हो फॉलो करने का, तो पूरा ही करो, थोड़ा गर्म करके पियो। एंड सेकेंड सर, आपने बोला था कि जैसे वो हनी नहीं मिक्स करना है, तो सर जैसे हम कभी सर्दी में काढ़ा, मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। नमिता सर, नमिता। हाँ, इधर दिख नहीं रहा है। अच्छा, ओके, बोलिए। सर आपने बताया था कि जैसे उषापान में हम हनी नहीं मिक्स करना चाहिए उसमें, हाँ। सेम सर हम जब सर्दी वगैरह होती है हम काढ़ा वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी हनी नहीं मिक्स करना चाहिए कभी? गरम काढ़ा है, हनी मिक्स नहीं करना चाहिए। ओके, गर्म पानी में हनी मिक्स गरम करना पानी में नहीं, है? काढ़े में हम लोग यूजुअली खड़ी शक्कर, मिश्री मिक्स करने के लिए मिश्री। बताते हैं। ये नॉर्मल थैंक शुगर यू। भी नहीं, मिश्री। ज्येष्ठी मध वेगळा, खडी साखर वेगळी। ज्येष्ठी मध हा औषध द्रव्य आहे, खडी साखर साखर आहे, ठीक आहे, दो दॅट इज ऑल्सो औषधी द्रव्य, पण नॉर्मल साखर नको, कारण त्याच्यात खूप केमिकल प्रोसेसिंग असतं त्या दृष्टीने। सर साखरेला ऑप्शन नाही, साखर म्हणजे पूर्वीच्या काळातली म्हणजे खडी साखरच होती, आता ही साखर आपण खात होती। येस प्लीज सर मला प्रश्न विचारायचा आहे. विचार। माझं नाव दीपा आहे. हा, सर मिलेट बद्दल तुमचं काय विधान. मत आहे? हा, मिलेट हा. छान आहेत, मिलेट वापरावेत, पण मिलेटच्या फार अतिआहारी जाऊ नये, कारण आपण उपासाला वरीचा तांदूळ खातो, विच इज अ स्युडो मिलेट, विच इज नॉट ऍक्च्युअली मिलेट, स्युडो मिलेट। पण वरीचा तांदूळ कसा खाता तुम्ही? आठवा बरं, बगर करून खाता, त्याच्यावर काय घालता? नाही, शेंगदाण्याची आमटी, त्याच्यावरती तूप, आणि मग खाता, कारण वरीचा तांदूळ हा कधी कधी, नॉट कधी कधी, पित्तळ. थिंक वात प्रकोप, राईट। पण जे ज्वारी आहे, जे इतर मिलेट्स आहेत, ते तुम्ही खा ना, हरकत नाही, पण आज मिलेटचं वर्ष म्हणून सगळं उठसूट मिलेट खाऊ नका, सगळ्या गोष्टी खा, त्यात मिलेट सुद्धा असून दे। सर एक एक मिनिट, एक क्वेश्चन चाललाय। सर मैं तृप्ति हूँ, पूछूं? नाही, वेगवेगळ्या प्रकारे खाऊ शकतो आपण, वेगवेगळ्या प्रकारे। आता तुम्हाला हे हुरडा खातो की आपण ज्वारीचा, हुरडाला कुठे वेगळ्या पद्धती, तो म्हणजे मऊ, त्याला पूर्ण काय म्हणू आपण, तरुणावस्थेतला असतो तो, कोवळा असतो तो, राईट। आणि दुसरी गोष्ट, त्याला प्रोसेसिंग वेगळं असतं त्याचं, पण त्याच ज्वारीची जेव्हा भाकरी खातो तेव्हा ते पीठ आपण दळतो। हा, पण भर्जित आहारचा वर्णन आहे तर तुम्ही भाजून खाल्लेलं कधी चांगलं, पण तेवढं तुमच्याकडे हो चालेल, किंवा त्या पिठामध्ये गरम पाणी घालतात पहा, तुम्ही जर ज्या करत असतील गृहिणी त्यांना माहिती असेल, साधं पाणी घातलं तर ती तुटते भाकरी, बाजरीमध्ये खास करून। हा, पण बाजरी खाताना सुद्धा तुम्हाला माहिती पाहिजे की कोणी खायची बाजरीची भाकरी। एखादी व्यक्ती जर पित्त प्रकृतीची असेल, नाजूक गोरीपान अशी मुलगी असेल, यंग एजची, आणि तिने जर बाजरी खात राहिली वेड्यासारखी, तर धावत गायनेकोलॉजिस्ट कडे पळायला लागेल, पाळीचे विकार चालू होतील। माझ्याकडे एक व्यक्ती होती, पेशंट थी, उसको गुजराती फैमिली थी, उसको शादी होके 3 महीना 4 महीना हुआ था खाली, एंड देन शी केम विथ प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, प्रोफ्यूज, दिन में कई बार पैड्स चेंज करने लग रहे थे उसको, एलोपैथी की दवाई खाई, गायनेक को दिखाया, गोली दिया, इंजेक्शन दिए, फर्क नहीं। देन शी सेड क्या उसका डीएनसी करना होगा। अभी ध्यान दो, 3 महीना हुआ है शादी को, बच्चा नहीं हुआ है, उसको कह रहे डीएनसी कराए। तो उसकी सास मेरी पेशेंट थी और उसकी ननद मेरी पेशेंट थी, तो बोली कि एक बार अपन सर के पास चलते हैं, तो वो लेके आई।
when I checked her diet detail, तो जैसे महाराष्ट्र में हम लोग देखते हैं ना देश आणि कोकण, तो उसमें फर्क रहता है, खाने पीने के सब पद्धतियों में फर्क रहता है। वैसे गुजरात में भी अलग अलग जोन से, सौराष्ट्र और कुछ अलग है, मैं भूल गया भाई। तो उनके यहाँ मीठा खाने का चलन था, सब्जी में शक्कर गुड़ ऐसे उनका था, और इनके यहाँ नहीं था। और सेकेंडली इनके यहाँ बाजरा की रोटी कई बार, और मेथी, मेथी का प्रयोग बहुत ज्यादा था। तो मैं बोला यार पहला मेथी बनकर बाजरा बनकर, उससे क्या होगा, बोला करके देख। तो दे रहा हूँ मैं, दवा तो दे रहा हूँ, 2 दिन के बाद मेरे को रिपोर्ट कर। बाकी भी उसको लोकल चीजें बताई। यू विल नॉट बिलीव, विद इन 2 days ब्लीडिंग रुक गया। फिर बोला एक बार वापस गायनेक को दिखा, सेम लेडी डॉक्टर, उनको मैंने ही भेज दिया कि भाई आप एक बार फिर भी चेक कर लो, आपकी तसल्ली के लिए। तो बोलती अरे क्या किया, हम लोग इतना स्टार्टरन दिए, ये दिए वो दिए, कम नहीं हो रहा था, आपने कैसे कम किया? मैं कुछ नहीं, उसका डाइट चेंज किया। एंड यू टू अंडरस्टैंड कि कौन क्या प्रकृति का है। इसके लिए हम लोग, मैं जब लेता हूँ कोर्स में, यू कैन सी माई वेबसाइट ayurvision.org, ayurvision.org। तो आई हैव केप्ट दोज डिफरेंट मॉड्यूल्स कि प्रकृति करके एक उसमें रहता है, तो वो अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रकृति रहती है, उसके अनुसार डाइट होना चाहिए। यहाँ तक आगे जाके हम लोग बोलते हैं कि अलग अलग योगा प्रैक्टिस भी देते हैं हम लोग। ऐसा नहीं कि सबको एक गुड़ा 12 टक्का, हर एक को अलग अलग, इसको ये सूट होता है तो इसको ये नहीं होगा, राइट। तो वो चीज अगर हम जान ले और सीख ले, तो आगे जाते आपके लिए भी, परिवार के लिए भी, आपके विद्यार्थियों के लिए, और आगे जाके आप योगा टीचर है या योगा थेरेपिस्ट है तो आपके पेशेंट के लिए, सभी के लिए इसका अच्छा प्रयोग हो सकता है। सर एक क्वेश्चन हाँ लास्ट। सर आजकल जो बोलते हैं कि दूध और दूध के प्रोडक्ट्स, हाँ बोला। दूध के प्रोडक्ट्स मत लाइए, तो सर थोड़ा कंफ्यूज ये होते हैं कि मैंने दही है, बोला है, एक मिनट, आपने गलत सुना है या गलत धारण किया है उसको। हाँ मैंने जी ऐसा सर। कदापि नहीं कहा कि दूध के प्रोडक्ट ना लो, बताया मैंने? नहीं बताया। मैंने बताया दूध और गुड़ साथ में मत लो। नहीं नहीं सर, ये मैं नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रही हूँ, जो आजकल हाँ। वीगन तो चल रहा है सर। तो सर हाँ। इज इट ट्रू कि जैसे दूध और दूध के प्रोडक्ट्स है, तो सर एक्चुअली तो जैसे प्रोटीन दही वगैरह लेते, घी लेते, तो आयुर्वेद में तो बोलते ही है कि ये लेना चाहिए सर। तो बिल्कुल। सर आपका ओपिनियन ले रहे हो हाँ, सर? दूध के लिए बेसिकली दूध की चर्चा 8 दूधों की है आयुर्वेद हाँ। में, 2 दूध की नहीं। गाय का दूध, भैंस का दूध, ऊंट का दूध, हाथी का दूध, हाँ रियल में है। हाँ, वाघाचं दूध, नंतर मेंढ्याचं दूध, ऐसे 8 अलग अलग मिल्क के चर्चा है। तो दूध हाँ के जी। ऊपर नहीं लेना चाहिए, सवाल ही नहीं है। ओके। ओके। तो बताने वाले हैं उनको मेरा क्वेश्चन है कि आप इतने उम्र तक कैसे आए? आपने भी दूध पिया है, माँ का पिया है, गाय का पिया है, भैंस का पिया है, राइट। और बाद में आपकी बुद्धि इतनी तेर तर्राज हुई कि आज आप वेगान वेगान बोल रहे हो। ठीक है, तो ये एक चीज हुई। और क्या पूछना है? ओके सर। हाँ, तो ये हम उसमें चर्चा में नहीं पड़े। वेगन जिनको फॉलो करना है करने दो, ओके राइट। है ना। ये अभी लोकशाही है, हम किसी को मना नहीं कर सकते। हमें क्या करना है, हमारे पास उसका निर्णय है ना। ओके सर, यस, थैंक यू सर। या थैंक यू। या सर जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, आपका लेक्चर काफी अच्छा था, Thank you, काफी sir. इंफॉर्मेटिव था। Thank थैंक यू सर। एक सवाल करना था आपसे कि आई एम फ्रॉम साउथ इंडिया एक्चुअली। यस। तो हम लोग साउथ इंडिया में हम लोग खीर बनाते हैं जिसमें गुड़ और दूध यूज करते हैं, पायसम, जिसमें खीर और दूध और गुड़। दूध भी पड़ता है, ये भी पड़ता है। आई नो दैट। See, now in this, once again, payasam is not made 365 days. It is only made for Onam or for any festival or for shadi. So it is not to be consumed every day. The message is that. ओके, दिनचर्या में नहीं आते। चर्चा चल रही है ना, चाय की चर्चा हो रही है, ये गुड़ का चाय रोज पियेंगे लोग और गड़बड़ कराएंगे। Once in a while you can have payasam, enjoy, मैं भी करता हूँ।
Okay. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. हाँ सर बस इनका क्वेश्चन है आयुर्वेद और होम्योपैथी में फर्क क्या है। ओके आयुर्वेद ये भारत का अपना शास्त्र है, वैद्यक शास्त्र है, जो कि 5000 बीसी से चलते आ रहा है। होम्योपैथी के जो डॉक्टर हनीमन सर थे वो स्वयं में एलोपैथिक के डॉक्टर थे, एमडी। उनका बच्चा, उनका बेटा एक समय ऐसा आया कि फीवर हो गया और उससे वो बचा नहीं पाए, राइट, वो चल बसा अनफॉर्चुनेटली। तो उनको बहुत ये हुआ कि भाई ये अपना एलोपैथी का जो अवेलेबल है उसमें कुछ खामी है, तो क्यों नहीं हम लोग उसके ऊपर संशोधन करें। और जब वो करते गए तो उन्होंने बहुत सारी चीज पढ़ी, उसमें आयुर्वेद भी पढ़ा। और उनकी जो पद्धति है कि ट्रिचुरेट करके, ट्रिचुरेट मतलब मर्दन करून, वो एक औषध का कण और 99% शुगर का कण, वो उसको ट्रिचुरेट करते हैं, फिर वो 1x होता है, फिर वो 1x का कण और 99% शुगर, तो 2x, ऐसे 500x तक जाते हैं, 40x तक जाते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल है ना, मर्दनम गुणावर्धनम, ये आयुर्वेद का है, ठीक है। और उनका और एक प्रिंसिपल है कि जो चीज से व्याधि होती है, बीमारी होती है, वो चीज ही खिलाना, सिमिलाय भी सिमिलस, ऐसा प्रिंसिपल है उनका। तो वो प्रिंसिपल भी आयुर्वेद में, आयुर्वेद में 9 अलग अलग तरह से हम चिकित्सा देते हैं। तो उसमें 2 ये पर्टिकुलर चीजों को उठा के उसमें अपने आप में उन्होंने बहुत रिसर्च किया, हर चीज को उन्होंने देख के देखा और फिर जो पद्धति बनाई उसका नाम है होम्योपैथी। तुमचं मत टाकू नका, याला म्हणतात कलरिंग द अनदर स्टेटमेंट। मी तुम्हाला हिस्ट्री सांगितली, मी असं नाही म्हटलं, त्यांची प्रक्रिया सांगितली। त्यामुळे होमिओपॅथी ही वेगळी चिकित्सा पद्धती आहे, आयुर्वेद ही वेगळी चिकित्सा पद्धती आहे। पण आयुषच्या अंडर आयुर्वेद, योग, युनानी, सिद्ध आणि होमिओपॅथी अशा 5 पद्धती आहेत, म्हणून होमिओपॅथीचाही समावेश आयुषमध्ये केला जातो, ठीक आहे। साबुदाण्याच्या गोळ्या आपण ज्या बघतो त्या होमिओपॅथी, टिंक्चर बघतात ते होमिओपॅथी, राइट। I think time is over, but let me thank all of you for patient hearing. Thanks to all. And अगर कोई questions है तो you can ask me on my number. I'll give my number. Take down 98926 98275। वापस रिपीट करता हूँ 98926 98275। तो व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजो, अगर आज का रेफरेंस हो, ये न्यू एज में आज लेक्चर हुआ उसके हम लोग स्टूडेंट थे, तो ये क्वेश्चन है। अगर इंडिव्हिज्युअल क्वेश्चन है, ओपन क्वेश्चन है, तो आई विल डेफिनेटली आन्सर। पार्ल्यामध्ये, वाशीमध्ये, पार्ल्याला इथे तुमच्या वाशीत आपण नंतर बोलूया, या संपून देत नंतर बोलूया। हा, आणि ayurvision.org वेबसाइट है, ओके, ayurvision.org। आणि ayurinstitute@gmail.com ईमेल है, ayurinstitute@gmail.com। आय होप तुम्हाला खूप खूप बोर केलं नसावं, एन्जॉय झाला असेल तर चांगली गोष्ट। चलो, थँक्यू and all Thank Thank you. you, sir. Very informative, very good session. Thank you, Wonderful sir. session, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much, sir. थँक्यू। करू बंद ना।